صاحب سے واقف ہیں. ابھی ان کی تازہ کتاب میں نے کوشش کی کہ آپ حضرات کے لیے اس کی اور متعدد نسخے جو ہیں وہ کہیں سے حاصل کر سکوں، لیکن ابھی تک یہ بازار میں آئی نہیں رہی. اب آ گئی ہے جی، لیکن لیٹ آئی ہے بہت. اچھا، کل میں کل گیا تھا تو کل مجھے نہیں ملی. اچھا جی. ہاں. تو بس اس کتاب کا جو انتصاب ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تعارف کی جگہ، کیوں مفتی صاحب کو تعارف ویسے کرانا تو ممکن نہیں ہے. اس مرحوم بیوروکریسی کے نام جس نے قائد اعظم کے پاکستان کو پہلے 11 برس میں آسمان پر پہنچا دیا اور جسے انقلابی رہبروں نے اگلے 13 سال میں ہلاک کر دیا. تاریخ پیدائش 14 اگست 1947، تاریخ وفات 21 اپریل 1972. تو مجھ جیسے لوگ جو 1972 کے بعد نوکری میں آئے وہ ایک مردہ خانے میں میرے خیال سے آئے ہیں کیونکہ تاریخ وفات ہو چکی تھی. ایک کتاب کے جو روح ہے میرے خیال سے ایک چھوٹا سا اقتباس میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ جس دن مفتی صاحب کا سول سروس اکیڈمی میں پہلا دن تھا اس دن کے بارے میں ہے، جب جوفری برجس جو آخری غیر ملکی اور انگریز ڈائریکٹر تھے سول سروس اکیڈمی کے، جو اس وقت تک غیر ملکی جو افسران تھے وہ اکیڈمی کے سربراہ تھے. اکیڈمی میں ہمارا پہلا دن، اس دن کی پہلی کلاس. مسٹر برجس بڑے دھیمے انداز میں کمرے میں داخل ہوئے، کلاس کا سامنا کر کے کڑی نظر سے ہر چہرے کو پڑھا اور صاف ستھرے شائستہ لہجے میں ایک فقرہ بول کے خاموش ہو گئے. حضرات، میں آپ کو اس اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں، مگر مجھے آپ کے ملک کے متعلق ایک تشویش لاحق ہو گئی ہے. اب وہ خاموش، ہم سب حیران، بلکہ دم بخود کہ یہ کس قسم کا سواگت ہے. لمحہ بھر کے لیے میں نے سوچا کہ شاید وہ مارشل لاء کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مگر میرا خیال غلط نکلا. انہوں نے دوبارہ بات شروع کی. آپ سب کی تعداد 23 ہے. آپ سب کے قوائف میں دیکھ رہا تھا کہ آپ میں سے 18 افراد پچھلے 2 برس میں کسی نہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے اور ساتھ ہی مقابلے کے امتحان کی تیاری بھی کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دوران آپ اور دیگر اساتذہ جنہوں نے امتحان تو دیا مگر یہاں تک نہیں پہنچ سکے، اپنا تدریسی فرض پوری یکسوئی سے ادا نہیں کر رہے تھے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سلسلہ سال بہ سال جاری ہے اور جاری رہے گا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے تعلیمی اداروں کے طلبہ اپنے اساتذہ کی پوری توجہ سے محروم رہتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں استاد اپنے پیشے سے مطمئن نہیں اور اسے چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہتا ہے، اس ملک کے مستقبل کے متعلق تشویش پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سے آپ اس کتاب کی روح اور اس کے مصنف کے بارے میں بہت کچھ میرے خیال سے جان گئے ہوں گے. اب بغیر کسی تمہید کے میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اگلے 2 گھنٹے تک کے لیے، جو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں تقریباً مغرب سے پہلے ختم کرنا ہوتا ہے، ورنہ تو ہم آپ کو، اور اگر میرا تو اصرار ہوگا کہ آپ اگلی دفعہ بھی تشریف لائیں، کیونکہ یقیناً 1-2 گھنٹے کے چھوٹے سیشن کے اندر ہم جو ہے وہ کما حقہ آپ سے استفادہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ آپ کے پاس ہے سامنے، آپ کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں اس پہ آپ خود ہی نظر ڈالیے. جی بس تو اس لیے ابو احمد عاقب صاحب، خالد رحمان صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل میں شرکت کے لیے موقع دیا. آئی پی ایس سے میرا تعلق کافی پرانا ہے. جب میں 1994 میں ریٹائر ہوا، میری ملازمت تو 36 برس کے لیے ہے لیکن ریٹائرمنٹ تقریباً 26 برس ہی ہو گئی ہے. تو 1994 میں ریٹائر ہوا تو خالد رحمان صاحب آئی پی ایس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے. اب جوان ہیں، اس وقت نوجوان تھے، اور یہ سیمینار کروایا کرتے تھے. 2 ایک سیمینار میں مجھے بھی حصہ لینے کا موقع ملا. اس کے بعد پھر مصروفیات کی نوعیت بدل گئی اور میرا تعلق جو تھا ٹیمپریریلی منقطع ہو گیا. چونکہ آج پھر واپس آ گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق دوبارہ قائم ہو گیا ہے. آپ کا دعوت نامے کے اوپر جو تعارف تھا اس میں اورل ہسٹری کے پروجیکٹ کا نام سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی.
तजर्बाकार इसका ट्रांसलेशन जो मैंने अपने तौर पे किया वो तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट की ज़बान से टाइम्स एंड लाइफ यानी ज़िंदगी और ज़माने का अहवाल। अब ये पहले तो मैंने समझा कि ये इसी किस्म की चीज़ होगी जैसे कलाम शायर बज़बान शायर एक तफरीही मजलिस होती है, लेकिन जब गौर से देखा तो अंदाज़ा हुआ कि एक बड़ी संजीदा कोशिश है, ऐसी कोशिश जिसमें आप माजी का नकूश हाल में बहुत मजबूत कर रहे हैं ताकि वो मुस्तक़बिल के लिए एक असासा साबित हों। तो इस लिहाज से मुझे इसी वजह से खुशी हुई क्योंकि मैं पाकिस्तान हिस्ट्री कमीशन से अरसा पहले मायूस हो चुका था। डॉक्टर कनीज़ यूसुफ उसकी चेयरमैन होती थी और इसी तरह डॉक्टर सफदर महमूद हुआ करते थे। तो मैंने इन दोनों से पूछा कि हिस्ट्री कमीशन जो है क्या कोई इस किस्म का ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड हमारी हिस्ट्री का रख रहा है जिसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। तो उन दोनों ने लाइल्मी का इजहार किया और ये कहा कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। सब ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि किसी ज़माने में जब पंजाब यूनिवर्सिटी में 1950 के आसपास जर्नलिज्म डिपार्टमेंट शुरू हुआ तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, इवनिंग क्लासेस होती थी और वहाँ उन्होंने मैं बताया कि एक चीज़ होती है उसको कहते हैं कीसिंग्स आर्काइव्स। कीसिंग एक अंग्रेज़, उसने एक छोटा सा काम शुरू किया जो उसके बाद इंस्टीट्यूशन बन गई और वो ये था कि आज जो वाक़या हुआ है उस वाक़े को लिख लिया जाए। तो वो कीसिंग आर्काइव वाक़यात का एक डेली रिकॉर्ड होता है जो उसने शुरू किया और उसके बाद अब वो एक रेफरेंस के तौर पे सारी जर्नलिस्टिक दुनिया जो थी उसको इस्तेमाल करती थी और वो आज भी जारी है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करना चाहता है तो हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत आती है वो तारीख़ को अपने अंदाज में री रिकॉर्ड करने की बल्कि ख़राब करने की कोशिश करती है। के अज़ीज़ ने तो किताब भी लिख दी है जिसमें मर्डर ऑफ हिस्ट्री का उन्होंने लिखा है। तो मैंने कहा अक्सर हुकूमतें जो है वो हिस्ट्री को मर्डर कर रही हैं, तो कीसिंग्स आर्काइव किस्म की या कोई भी इस किस्म का रिकॉर्ड है? तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि कोई किसी यूनिवर्सिटी को आपने असाइन किया हुआ है हिस्ट्री डिपार्टमेंट को कोई बुक करे, किसी और अदारे को? तो वो कहने लगे हमने नहीं किया हुआ। तो यूँ समझिए कि एक हमारे यहाँ हिस्ट्री के मामले में एक खला है और जब मैंने ये देखा कि आप ओरल हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसलिए मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, थोड़ी नहीं खुशी तो ज़्यादा हुई। अब काम कितना होता है ये उसकी तनासब से खुशी होगी। आज के मौजू में ब्यूरोक्रेट की ज़िंदगी और ज़माना है। अब ना ज़िंदगी पे हमारा कोई कंट्रोल है ना ज़माने पे कंट्रोल है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ ज़िंदगियाँ ज़माने पे असर डालती हैं और बाज़ ज़माने ज़िंदगियों पे असर डालते हैं। पहली मिसाल कायद-ए-आज़म की है, दूसरी मिसाल 1947 की पार्टीशन की है कि उस ज़माने ने ज़िंदगियों पे क्या असर डाले। इसलिए ज़िंदगी और ज़माना दोनों हमारे बिसात से बाहर हैं, तो इसलिए मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता या कर सकता। सिर्फ ये होता है कि जब ये असरअंदाज हो रहे होते हैं तो बाज़ लोग उनको ज़्यादा करीब से देखते हैं और बाज़ दूर से देखते हैं, बाज़ हाज़िर वक्त में देखते हैं, बाज़ लेट वक्त में देखते हैं। तो ये कर सकता है आदमी के उस ज़माने को और अपनी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ हमने देखा वो आपकी खिदमत में हम आज कर दूँ, और यही आज मेरा मकसद है। पहले ये बता दूँ कि मैंने ऐसा क्या देखा जो आपने नहीं देखा। मेरे ख्याल में नहीं देखा, शायद देखा हो, लेकिन जो इर्द गिर्द मैं चेहरे देख रहा हूँ उसमें ऐसे लोग कम होंगे जिन्होंने वो ज़माना देखा है जो मैंने देखा है।
एक जुमले में मैं ये अर्ज कर देता हूँ कि मैंने ब्यूरोक्रेसी को हीरो से ज़ीरो बनते हुए देखा है, और ग्रामीण कदर कहलाते भी देखा है, और गालियाँ खाते भी देखा है। और ये चीज़ ऐसी है जो शायद आप लोगों में से कम ने देखी हो, और मेरा आज का मौजू यही होगा कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसकी वजूहात क्या थी। जब ये ब्यूरोक्रेसी वाले लोग ग्रामीण कदर कहलाते थे तो उस वक्त अख्तर हमीद खान, शुएब सुल्तान, इन जैसे लोगों को आलमी पजीराई मिली। मसूद खद्दरपोश के हमने बातचीत की, सुना, उनकी बातें सुनी। उनको अपने इलाके में जब वो डिप्टी कमिश्नर थे तो मसूद भगवान कहा जाता था। ब्राह्मणबाड़िया में NM खान जब सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट थे, SDM थे, तो वो इतने पॉपुलर थे, नियाज़ मोहम्मद खान, कि लोगों ने अपने स्टोरों के नाम, अपने स्कूलों के नाम, अपने चाहने वालों के नाम नियाज़ रखना शुरू कर दिए थे। तो ये उस ज़माने की बात है जब ब्यूरोक्रेसी जो थी उनको ग्रामीण कदर कहा जाता था। उसके बाद फिर मैंने वो ज़माना भी देखा कि जब ऐसे ही लोग जिनको कभी ग्रामीण कदर कहा जाता था उनकी बिला जवाज़ बरतरफी हुई, तो अखबारात ने तहसीन के डोंगरे पर से एडिटोरियल लिखे और डेड वुड के नाम पे कहा कि डेड वुड साफ़ कर दी गई है। तो ये तब्दीली जो थी आपने सुनी है, मैं उसका ऐनी शाहिद रहा, और थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने देखी हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। कोशिश मेरी ये होगी कि बड़े मुख्तसर अल्फाज में बातचीत करूँ ताकि बाद में सवाल जवाब में आप ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकें। ज़्यादा वक्त मैं अपने इसमें नहीं लूँगा जी। कुछ अपने इब्तदाई दिनों का, पैदाइश, जिस इलाके में पैदाइश हुई, जो लोग किताब ले सकें, मेरी दरख्वास्त तो ये होगी कि आप किताब लें, इससे आपको मुकम्मल शख्सियत का तारुफ होगा। इस किताब का स्कोप इससे ज़्यादा है। ये तो मैं ज़रा ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं कुछ ना कुछ आ जाएंगी, बाकी सवालों जवाब में जो चाहें आप पूछ सकते हैं। आपके इस सवाल से रेलेवेंट ही बात मैं करने लगा था कि मैंने ब्यूरोक्रेसी के 3 दौर देखे। पहला दौर वो था जब मैं स्कूल में था, और वो ब्रिटिश दौर था। जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो उस वक्त पार्टीशन हो रही थी, और जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो पाकिस्तान कायम हुए 2 हफ्ते हुए थे। तो पहला दौर जो मैंने देखा वो ब्रिटिश दौर की ब्यूरोक्रेसी देखी, वो और हमवार दौर था। वो एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का हमवार दौर था। दूसरा दौर जो था वो जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में था, तो उस वक्त कायद-ए-आज़म की पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का उभरता हुआ दौर था। हमवार नहीं था बल्कि ऊपर की तरफ उभरता हुआ दौर था। और तीसरी चीज़ अयूब, याह्या और भुट्टो की ब्यूरोक्रेसी, उसका ढलता हुआ दौर था। तो ये 3 दौर मैंने देखे। पहला दौर जो था उसमें दौरे ग़ुलामी का हुस्न इंतज़ाम, मैं लफ्ज़ हुस्न इंतज़ाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, विच मीन्स गुड गवर्नेंस, क्योंकि उसमें अमन व अमान होता था, इंसाफ होता था, क्वालिटी एजुकेशन होती थी, रोज़गार होता था। या यूँ समझिए कि जो 1971 में हमें वादा किया गया, रोटी कपड़ा मकान, वो उस वक्त हर तरफ मुयस्सर था। दूसरा दौर कायद-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की मेहनती और मुखलिस ब्यूरोक्रेसी देखी, जिनकी इंतज़ामी मोजज़ों की वजह से पाकिस्तान ने हैरत अंगेज़ तरक्की की। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान का सुनहरी ज़माना था, और मुझे
यूं लगता है कि आप में से ज़्यादा ने वो सुनहरी ज़माना नहीं देखा, बाज़ ने ज़रूर देखा होगा। उसकी तफसील आउटलाइन मैं थोड़ी सी आपको दूंगा, जो इस किताब में कहीं कहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसकी चंद इक़्तिबासात पेश करता हूँ। इख्तिसार की खातर मैंने नोट सामने रखे हुए हैं, मगर ना बात दूर से दूर चली जाती है, इसलिए बाकी सवाल और जवाब में आप जो चाहें पूछ सकते हैं। एस अकबर ज़ैदी हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 1999 में शाया की थी। वो उसके बारे में उसमें पाकिस्तान के पहले चंद बरसों का जिक्र इन अल्फाज में किया गया है। पाकिस्तान की पैदाइश के वक्त अमेरिका के बाअसर हफ्त रोज़ा दी टाइम्स ने 1947 में तबसरा ये था कि ये नया मुल्क तबाही और बर्बादी का मलबा है, जो हमेशा माशरती बदअमनी से दो चार रहेगा। इस नए मुल्क के मुतल्लिक़ दुनिया में जो तासुर पाया जाता था, उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पापनाक ने अपनी तहरीर में यूँ समझाया था: ब्रिटिश इंडिया की तकसीम से खसारे का सौदा बनकर उभरने वाले पाकिस्तान के मुतालिक गालिब ख्याल यही है कि इक्तिसादी लिहाज से ये एक अजीबुल खलकत गैर फितरी खित्ता ज़मीन है, जो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है, क्योंकि इसमें ना तो काबिल ज़िक्र इंडस्ट्री है, ना कोई सनती खाम माल पाया जाता है, और ना ही किसी नुमायाँ सनती या तजारती ग्रुप की मौजूदगी है। इस वक्त ये बावर करना मुश्किल है कि सनतकारी का अमल इसकी आबादी के फैलाव की रफ्तार पर हावी हो सकेगा, बल्कि ज़्यादा इम्कान यही है कि सियासी और माशी तौर पर ये मुल्क अफरा तफरी से ही दो चार रहेगा। दुनिया वालों का यह तअस्सुर कुछ ऐसा गलत भी ना था, और पाकिस्तानी अहले नज़र को ख़ुद भी एहसास था कि गालिब की तरह उनके घर में भी बोरिया ना था। इसलिए उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रैल 1948 में जब पहली सनती पॉलिसी बनाई, तो उसमें मुल्क को कौम की तही दामनी को इन अल्फाज में तस्लीम किया गया था। मैं कोट करता हूँ कि पाकिस्तान के माशी मंजरनामे का सबसे अहम पहलू ये है कि हमारे पास कुदरती वसाइल तो वाफिर हैं, मगर साथ ही सनत व हिरफत का कहत भी है। इस वक्त पटसन की आलमी पैदावार का 75% हिस्सा पाकिस्तान में उगाया जाता है, मगर हमारे यहाँ पटसन का एक भी कारखाना नहीं है। हमारे यहाँ आला किस्म की रुई की 15 लाख गांठें पैदा होती हैं, मगर उन्हें मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कपड़ों के कारखाने नापैद हैं। इसी तरह हमारे जानवरों की खालें, ऊन, तंबाकू और गन्ने जैसी खाम अशिया बड़े पैमाने पर दस्तयाब हैं, और पेट्रोलियम समेत दीगर मादनी वसाइल भी मौजूद हैं, मगर हम उन्हें बरूए कार नहीं ला सकते। इसलिए हमें ऐसी पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी जिसमें इन वसाइल का फ़ायदा उठाया जा सके। यानी ये 1948 में हमारे पॉलिसी मेकर्स का ख्याल था कि हमने अपनी खाली झोली को किसी तरीके से सनतकारी से भरना है। अब फिर जब ये पॉलिसी बन गई तो मुल्क के ब्यूरोक्रेसी पूरे खलूस, चूँकि मेरा सब्जेक्ट ब्यूरोक्रेसी है इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जब ये पॉलिसी बन गई तो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी पूरे खलूस और मेहनत से दामे दिरमे सुखने उस पर अमल पैरा हुई, तो जैसे आसमान से मोज़े उतरने लगे। वही अकबर ज़ैदी दोबारा लिखते हैं, 1949 से 1958 ये जिन सालों का जिक्र है वो उसको गौर करें। 1949 से 1958 के दौरान मुत्तहिदा पाकिस्तान में सनत की शरह नमू इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि इस ज़माने में दुनिया के किसी मुल्क में भी इस रफ्तार से नहीं बढ़ रही थी। 1949 से 1954 तक
भारी सनतों की शरह नमू 23.6% सालाना के हिसाब से छलांगे मारती आगे बढ़ी सॉरी और हैदराबाद और जूनागढ़ पर हमलों के बाद पाकिस्तानी कौम खौफजदा थी कि हिंदुस्तान हमारे मुल्क पर हमला की कोशिश न करे। हमें ना तो सनतकारी का कोई तजर्बा था, ना मुल्क में कोई सनती बुनियाद थी, और ना ही सनती इस्तेदाद वाले कारकुन दस्तयाब थे। इस किताब के मुसन्नफ़ के मुताबिक पाकिस्तानी मुआशियात, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन बाकी लंबे नहीं होंगे। पाकिस्तानी मुआशियात का पहला मर्रा 1939 से 48 तक का, जिसमें मुस्तकबिल के लिए तमाम पॉलिसियों और असूलों की बुनियाद रखी जा रही थी, नए मिलिट्री हाकम मगर पुरानी ब्यूरोक्रेसी ने आगे बढ़ाया। इन दोनों मराहल के तसलसल की वजह से ही 1960 की दहाई में दुनिया वाले ना सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की पर अंगुश्त बंदंदा थे, बल्कि तरक्की पजीर मुल्कों के लिए पाकिस्तान को नमूने का मॉडल डेवलपिंग कंट्री करार देते थे। अकबर ज़ैदी फिर लिखते हैं, चंद बरस में ही इस काया पलट ने मगरी दुनिया के उन नजूमियों के दांत कट्टे कर दिए जिन्हें पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नज़र आ रही थी। चुनांचे 1960 की दहाई के दरमियान उनकी राय ये थी कि पाकिस्तान की तरक्की। मज़ीद तायद के लिए एक और किताब की मिसाल वर्ल्ड बैंक के सेंट्रल एशिया के चीफ परवेज़ लिखते हैं, पाकिस्तान की तवाना ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क के इब्तदाई बरसों में माशी तरक्की की सही सिमत कायम की और बड़ी तेज़ी से मुल्क में सनतकारी के अमल को रवां किया। जिसके लिए मुल्क के फ़ंड का सही इस्तेमाल करने के अलावा बैरूनी अदारों से भी कर्जे लिए और मौसर अदारे कायम करके मुल्क का सनती ढांचा खड़ा कर दिया। ये इब्तदाई ज़माना 1947 से 1958 तक जारी रहा। जनरल अयूब जब इक़्तिदार में आए तो उससे पहले के बरसों में सियासी खलफशार तो बहुत रहा, लेकिन सरकारी मुलाजमों की फरासत और लगन से कई रियासती अदारे कायम हो गए थे। दफाई ताकत मजबूत हो गई थी। सनती सरमायाकारी के लिए बंदरगाहों और मवासलात और बिजली के शोबों में मुनासिब ढांचा तश्कील पा गया था, मगर सबसे नुमायाँ कारकर्दगी तेज़ी से सनतें कायम करने में नज़र आई। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसा अदारा 1949 में कायम हो चुका था और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन 1957 में कायम हो चुकी थी। हैफ दर हैफ ये है कि हमारी मौजूदा तारीख़ पहले मरहले में पाकिस्तान की तरक्की और ब्यूरोक्रेसी की कामयाब मनसूबा बंदी का ज़िक्र तक नहीं करती, हालांकि दुनिया वालों को ये दौर नहीं भूला। इस मरहले पे मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैं सर्विस के दौरान कुछ अर्सा डेपुटेशन पे एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में भी काम करता था और एक दफ़ा मलेशिया जो था वो मेरे चार्ज में था। ये मिड 80s का जिक्र कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा हमारा मिशन जो था वो वहाँ गया, 4-5 लोग थे। एक जर्मन था, एक फ्रेंच था, एक जापानी था, मैं अकेला पाकिस्तानी था। तो उनका जो प्लानिंग का हेड था उसके साथ हमारी मीटिंग हो रही थी। मीटिंग जब ख़त्म हुई और हम बाहर निकलने लगे तो उसने मुझे इशारा किया कि अब ज़रा रुक जाओ। मैं रुक गया। तो मुझे कहते हैं कि लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी। तो मैं समझा कि कोई बात करना चाहता है, तो मैंने हामी भर ली, चाय मंगवाई और उसने उठ के दरवाज़े को अंदर से बोल्ट कर दिया और फिर कहने लगा, फॉर गॉड सेक टेल मी व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद पाकिस्तान। ये मैं मिड 80s की बात कर रहा हूँ, जनरल ज़िया का दौर था। तो खैर उसके बाद गुफ्तगू शुरू हो गई तो मैंने उसको बताया कि हमारे यहाँ फ्यूडलिज़म और मार्शल लॉ और इस किस्म की चीज़ें बातचीत होती रही।
تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو نہ صرف دلچسپی ہے پاکستان سے بلکہ آپ کا نالج بالکل اپ ڈیٹ ہے، اور آپ کا یہ سوال جو ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ ہمیں فالو کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہماری یہ پلاننگ کی ساری بلڈنگ میں چکر لگا لیں، جتنے ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو 1951-52 میں پاکستان پلاننگ کمیشن نے ٹرین کیا تھا. آپ سے ٹریننگ لے کے ہم اپنے ملک کو کہاں لے گئے. اور اس نے باہر جو اشارہ کیا کھڑکی کے باہر، تو اس وقت کوالالمپور کی اسکائی لائن چینج ہو رہی تھی ہائی رائز بلڈنگ میں. کہنے لگی ہم اپنے ملک کو یہاں لے ہیں اور آپ کیوں اتنے نیچے چلے گئے. تو یہ وہ جو باتیں ہیں جو آج کل کے لوگوں کو پتہ نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنا موضوع جو ہے وہ یہیں بناؤں گا. یہ مفتی صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی آگے چلیں گے پھر بات میں آ جائے تو فالٹ کہاں لائی کر رہی تھی؟ جی فالٹ اس وقت کہاں لائی کر رہی تھی؟ اس کے لیے کتاب پڑھیے آپ. نہیں، فوج کا دیکھیے میں اس وقت فالٹ اس وقت کہاں موجود تھی؟ فالٹ فالٹ اس وقت کہاں موجود تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو کہیں پہلے فالٹ کہاں موجود تھا. میں عرض کروں گا جی، ابھی وہی عرض کروں گا. چونکہ میں نے تو صرف بیوروکریسی کے اوپر فوکس کیا ہے. ہاں اسی کی بات ہے. جی ایک اور مثال چھوٹی سی دے دوں جی کہ اس بیوروکریسی کا اس سنہری دور، اس کو میں سنہری دور کہتا ہوں پاکستان کا، چونکہ اس کے بعد ویسا زمانہ نہیں آیا. اس سنہری دور کی ان سب کا حاصل جمع اس سنہری دور کی گڈ گورننس تھی، جو دراصل انگریزی دور کے حسن انتظام کا ہی تسلسل تھا. چنانچہ ان دنوں جو غرض مند بھی متعلقہ دفتر سے رابطہ کر لیتا، اس کی داد رسی بغیر سفارش یا تعلقات کے ہو جاتی. ملازمت کے خواہش مند سیدھے ایمپلائمنٹ ایکسچینج چلے جاتے تھے اور اپنی تعلیمی استعداد کے مطابق کھڑے کھڑے 2-4 ایسے دفاتر میں انٹرویو کے پروانے حاصل کر لیتے تھے جہاں اسامیاں خالی ہوتی تھیں. اس لیے بے روزگار لوگوں کو تلاش معاش کے لیے کسی سیاسی وسیلے یا سرکاری دلال کی ضرورت نہ تھی. رشوت لینا یا دینا اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ والدین راہ چلتے لوگوں کی طرف ڈھکا چکا پہ اشارہ کر کے اپنے بچوں سے سرگوشی کرتے تھے کہ یہ رشوت لیتا ہے، تم اس کے بچوں سے دور ہی رہنا. ایک لمحے کی اور ہوگی. جی میں اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھتا ہوں گا، یا اسکول جانے والا ہوں گا. میں نے وہاں پر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن دیکھے. وہ غریب لوگوں کے گھر گندم دے کے 5 روپے میں گندم تھی، وہ وہاں ووٹ دے دیتے تھے. کیا وہ کرپشن نہیں تھی؟ گندم کون دیتا تھا؟ یہی جو الیکشن لڑتے تھے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو کانٹیکس پہ دوسری ہو جائے گی نا جی. میں تھوڑی سی بات، میری کرپشن روٹس میں موجود تھی، ذہنوں میں موجود تھی. اس کے اوپر ایک اور سیشن ہو سکتا ہے جی. کرپشن نہیں تھی جی اس وقت، سوائے پٹواری کے اور 5% PWD کے، بس اس کے علاوہ اور کوئی کرپشن نہیں تھی. وہ آپ زمانہ دیکھیے نا جی، میں جس سال زمانے کی بات کر رہا ہوں. ہاں صحیح ہے. پاکستان ریلوے نے تو انگریز کے تعمیر کردہ پرانے گھر کو نیا روپ دیا تھا، مگر دیگر کئی اداروں نے قیام پاکستان کے بعد جنم لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے قومی اور بین الاقوامی افق پر اپنا نام پیدا کر لیا. 3 ڈکوٹا طیاروں پر مشتمل اورینٹ ایئر ویز کو جب پاکستان ایئر لائنز بنا کر اس میں نئی روح پھونکی گئی تو پہلے تو PIA کے نام کا ڈنکا بجا، پھر یہ ایمریٹس ایئر لائن اور مالٹا ایئر لائن کی دیگر ہوائی ممالک کے ہوائی کمپنیاں بنانے میں مدد اور تربیت دینے لگی. قیام پاکستان سے پہلے واحد مسلمان بینک آسٹریلیشیا بینک سے قائد اعظم نے تعاون شروع کر دیا تھا. نیا وطن ملا تو اس بینک نے بینکاری کے شعبے میں ایسی رہنمائی کی کہ تھوڑے ہی عرصے میں نہ صرف کئی بینک جگمگا اٹھے بلکہ ہمارے بینکاروں کے لیے دوسرے ممالک سے بھی درخواستیں آنے لگیں.
पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1955 में कायम हुआ तो अच्छे नंबरों में एमएससी करने वाले लड़कों को दर्जनों की तादाद में वजीफ़े देकर पीएचडी के लिए दुनिया भर की नामवर यूनिवर्सिटी में भेजने लगा और वापसी पर उन्हीं की कोशिशों ने हमारे मुल्क को एटम बम से मुसल्ला करके हिंदुस्तान के खौफ से आज़ाद किया। आज़ादी के बाद जन्म वाले लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का पहला कारनामा ये था कि तबाहशुदा आलमी गेट के मलबे के पहाड़ साफ़ करवाए, फिर इन दोनों के तर्ज़ तामीर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक नया शाह आलम बाज़ार मार्केट तामीर करवाया। फिर ये अदारा समनाबाद, गुलबर्ग, शादबाग, शादमान और दीगर नई आबादियों के तरक्की मनसूबों को अमली शक्ल। इसी तरह थल डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम हुई तो थोड़े ही अरसे में थल के तपते सराहों में गुलजार इब्राहिम की तरह एक नया शहर जौहराबाद है। ये उस ब्यूरोक्रेसी का जिक्र है जिसने कायदे आज़म की क़यादत में पहले 10 बरस में इस मुल्क को सुनहरी दौर दिया था, इतना सुनहरी दौर कि उसकी चमक भी आज तक हमारे पास नहीं पहुंच सकती। एक चीज़ की वजाहत करते चले जाइए, कायदे आज़म के दौर में मुल्क को न्यूक्लियराई बनाने का ये थिंकिंग शुरू हो चुकी थी। मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर नहीं जी, ये भुट्टो का कारण है। नहीं, भुट्टो का नहीं था जी। जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन कायम हुआ, 55 की बात कर रहा है। हाँ, 55 की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक ब्यूरोक्रेट को तो जानता हूँ जो सिद्दीकी जी, हाँ, और वो कहते थे कि न्यूक्लियर बम का उन्होंने खुद फार्मूला इवॉल्व किया था, लेकिन वो CSP हो गए, लिहाजा उधर न जा सके, वरना वो कहीं और। ये जो एटॉमिक एनर्जी पहले चेयरमैन थे जो फिजिक्स के थे ना, प्रोफेसर। नहीं, मैं डॉक्टर तारफी की बात कर रहा हूँ, खुद उन्होंने मुझे ये बात बताई। अच्छा जी, चलिए, ये आप हमारे इल्म में इजाफा कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब सवाल पैदा होता है कि ये सब कुछ जो हुआ है, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान किसने किया, आपको तो उस वक्त सवाल यही था कि ये किसने किया। इसका जवाब बड़ा सिंपल है जी, कि ये उन क़ुव्वतों ने किया जो दौरे ग़ुलामी में अंग्रेज़ हाकिमों की आलाकार थी। उसके मैंने 3 आइडेंटिफाई यहाँ किया आज की मीज़ के लिए, वैसे तादाद ज़्यादा थी, लेकिन उनमें तो एक तो वडेरे थे जो अंग्रेज़ों की तख्लीक भी थे और अंग्रेज़ों के मफादात के परवरदा भी थे, और दूसरे वो फ़ौजी जिनके बारे में सदर अयूब ने अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर में लिखा है कि वो नाराज़ बोनापार्ट थे। नाराज़ बोनापार्ट उन्होंने इसलिए, यानी गैर मुस्लिम फ़ौजी चले गए तो इतनी तेज़ी से तरक्कियाँ हुई हमारे मुसलमान फ़ौजियों की कि वो इसे अपना बर्थ राइट समझने लगे और ज़्यादा एम्बिशियस हो गए कि हमें इससे और ज़्यादा क्यों नहीं मिलती। तो जा परस्ती जो थी ना, उसको उन्हें नाराज़ बोनापार्ट का लफ्ज़। और तीसरे थे अंग्रेज़ी दौर के खुफिया पुलिस की कठपुतली जो मुल्ला थे, हमारे मौलवी थे। खुफिया पुलिस जो थी ब्रिटिश दौर में, वो पूरा उसका इस्तेमाल हमारे मौलवियों को और मस्जिदों का करती थी। तो ये 3 जो क़ुव्वतें थी ना जी, इन्हों को अगला सवाल है कि क्यों किया इन्होंने, अगर तो उसका भी जवाब आसान है कि ये तीनों जो फोर्सेस थी ये कायदे आज़म के तसव्वुर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। कायदे आज़म का तसव्वुर पाकिस्तान बड़ा सिंपल था कि आइन और कानून की बालादस्ती, फलाही ममलिकत, वेलफेयर स्टेट, आइन और कानून की बालादस्ती, मेरिट और सोशल जस्टिस, ये 3-4 चीज़ें थी जो कायदे आज़म का था। और उसका मैं आगे आपको हवाला दूंगा। ये तीनों जो मैंने क़ुव्वतें बताई हैं जी, सख्त खिलाफ थे कायदे आज़म के तस्वुर, खाली खिलाफ नहीं थे जी, सख्त खिलाफ थे। और इसीलिए इनमें से एक ने 1958 में
पाकिस्तान को अगवा कर लिया, दूसरे वडेरे उनके साथ मिल गए और फिर मौलवी भी साथ मिल गए, तो एक इत्तेहाद सलासा हुआ। तो कायदे आज़म का पाकिस्तान जो था उसकी उम्र सिर्फ 11 बरस थी। उसके बाद आप पाकिस्तान जो था वो कायदे आज़म का नहीं रहा, बल्कि इस इत्तेहाद सलासा ने अगवा किया और आज तक उनका यरगमाल बना हुआ है। तो जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस मंजरनामे में से गुजरी है। और तीसरा सवाल आ जाता है कि ये कैसे किया। इसका बड़ा सिंपल उन्होंने किया कि उन्होंने कहा कि जिसको हमने अगवा किया है उसका कहीं ज़िक्र तक ना हो, मग़वी के बारे में लोगों को कोई अंदाज़ा ना हो कि जो जिसको अगवा किया है वो किस किस्म का था, हुलिया क्या था, शक्ल सूरत अच्छी थी, बुरी थी, जैसे भी था, तो मग़वी का कोई ज़िक्र ना किया जाए। तो इसलिए आपकी तारीख़ में पहले 11 बरस का कोई ज़िक्र नहीं है। ये अभी जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पढ़ के सुनाए हैं, ये मुझे किसी किताब में नज़र नहीं आते, ये मुख्तलिफ़ किताबों से इकट्ठे किए गए हैं। ये मैंने आपसे सुन रहा हूँ, आपकी किताब में देखा कि KM चीमा ने इसका जिक्र किया, एक ब्यूरोक्रेट। KM चीमा ने क्या किया जी? कहा था पहले 11 साल में कहीं करप्शन नजर नहीं आता। नहीं, वो जो मैं तो कहता हूँ उस ब्यूरोक्रेसी ने जो कुछ देखा है वो उन सबको पता है जी। वो कहने वाले बहुत हैं जी, फ़र्क ये है कि कोई ज़ेरे लब कहते हैं, कोई बावाज़ बुलंद कहते हैं, कोई ना कहने में आफियत समझते हैं, तो महसूस सब करते हैं और उसके ऐनी शाहिद सारे हैं जी। तो मैं तो उस ब्यूरोक्रेसी की उस दौर की बात कर रहा हूँ जिसमें से गुजरा जी। तो इसलिए कैसे का ये था कि 11 बरस में जो जिसको इन्होंने अगवा कर लिया उसका ज़िक्र ना हो और उस ज़माने की ब्यूरोक्रेसी को हीरो की बजाय विलन मशहूर कर दिया जाए। और विलन मशहूर करने के बाद हर रोज़ ये कि हम नौआबादी दौर के ज़माने के इस्लाहात दरअसल पत्थर थे जिनसे इनको संसार किया जा रहा था। इस्लाहात ये थी कि ये वो रोल ना अदा करें जो रोल कायदे आज़म ने, जिसका मैं अभी ज़िक्र करूँगा, इनको दिया था, बल्कि वो रोल अदा करें जिसमें हमारे मफादात जो हैं वो चलते रहें। मुझे मैं बड़ा क्रेजी हो रहा हूँ, I'm sorry। एक बात और देर में आती है, इस कॉन्स्पिरेसी की आप जिक्र कर रहे हैं, ये ट्राइकोला टाइप कॉन्स्पिरेसी होती है। नहीं जी, कॉन्स्पिरेसी नहीं थी जी, एटीट्यूड से जी। एटीट्यूड से इसकी डेकोमेंट नहीं, कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल नहीं थी। कॉन्स्पिरेसी अगर थी तो चंद लोगों के ज़हन में थी या चंद ग्रुपों के ज़हन में थी। वो कॉन्स्पिरेसी की शक्ल में नहीं थे, एटीट्यूड थे कि जब वो कायदे आज़म की तकारीर सुनते थे तो वो नाराज़ होते थे कि ये क्या बातें करें, ये किस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं, इस तरह तो हमारे मफादात पे असर पड़ेगा। कॉन्स्पिरेसी का जिक्र उस वक्त आएगा जब रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस का जिक्र होगा, वो प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी है, उसका मैं अभी जिक्र करूँगा जी। तो उसके बाद 1958 आ गया। 20 नवंबर को जब हम सिविल सर्विस अकेडमी पहुँचे तो मार्शल लॉ नाफिज हुए 2 महीने हुए थे। और अभी आकिब साहब ने बर्जिस का जो आपको बताया है कि पहला लेक्चर जो था, नहीं पहले मैं बर्जिस का पस मंज़र आपको बता दूँ। किस्सा ये था कि जब पाकिस्तान बना तो सारे ICS ऑफिसर जो थे उनको ऑप्शन दी गई थी कि आप रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सब ने कहा हम जाना चाहते हैं। एक भी यहाँ नहीं था। कायदे आज़म जब आए तो उस वक्त हमारे गैर मुस्लिम जा चुके थे, तो उन्होंने देखा कि टोटल वैक्यूम है, तो कायदे आज़म ने चौधरी मोहम्मद अली को सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया और उनसे कहा गया कि आप इंग्लिस्तान चले जाएं और सेंसिटिव जगहों के लिए जहां हमें ज़रूरत है कि हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी को और अपने मुल्क को बनाना है, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लाएं।
चुनांचे पुराने ICS ऑफिसर जो थे, जिन्होंने हमारे इलाके में काम किया था या किसी और इलाके में काम किया था हिंदुस्तान के, उनमें जो उनको रिक्रूट किया गया, तो जेफरी बर्जेस, जी बर्जेस लिखते थे, वो 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आए और जब हमने ज्वाइन किया ये उनका आखिरी बरस था, और चूंकि आखिरी बरस था तो इसलिए हमसे वो बड़ी खुल के बातें किया करते थे और वो कहते थे कि मैं आप चला जाऊंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे तजुर्बे हैं वो मैं आप तक करूंगी। तो बर्जेस साहब ने जो तकरीर की उसका पहला हिस्सा तो इन्होंने पढ़ कर आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि आप तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू मेक ए मैन आउट ऑफ यू। पता नहीं किस किस्म का मैन वो बनाना चाहते थे, लेकिन वहाँ ये हुआ कि आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सो मच सो कि एक जो ऑफिसर थे उनके ऊपर म्यूटनी का चार्ज बन गया कि ये बगावत है, और इतने झगड़े हुए कि वो जो प्रोग्राम था वो वक्त से पहले ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद हमेशा के लिए abandon कर दिया गया। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। एक चीज़ और है कि उसके बाद जब इंग्लिस्तान जाना बंद हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान में जो 4 महीने जाते थे वो भी बंद कर दिए इन्होंने। आपका सवाल था कि ये क्यों ऐसे कर रहे थे, उसका बड़ा सिंपल है जी, कि ये ब्यूरोक्रेसी का चेहरा वही रखना चाहते थे, जिस्म वही रखना चाहते थे, किरदार बदलना चाहते थे, सोच बदलना चाहते थे। वेलफेयर स्टेट वाली सोच नहीं होगी, बल्कि जो हुकूमत वक्त है उसकी खिदमत की सोच होगी। जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था ना कि वो जो 3 क़ुव्वतें थीं जो कायद-ए-आज़म के तसव्वुर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, वो ख़िलाफ़ मुखालफत ही यही थी कि वो वेलफेयर स्टेट नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि हमारे अपने मफादात जो हैं वो आगे बढ़ते रहें। और कायद-ए-आज़म ने ब्यूरोक्रेसी को इस तरह ट्रेन किया था कि आपने किसी की परवाह नहीं करनी, आपने कानून के मुताबिक फ़ैसले देने हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेसी उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थी जब सदर अयूब आए, और ये रीज़न था जिसकी वजह से वो ये कर रहे थे। और उसके लिए इन्होंने 3 तरीके इस्तेमाल किए, एक डिसमिसल का, दूसरा इंडक्शन का, और तीसरा डीमोरलाइजेशन का। अयूब ने कितने 1500 अफसरान को बरतरफ किया तो इल्ज़ाम क्या था, करप्शन और नाअहली, यानी जिन्होंने पाकिस्तान को सुनहरी ज़माने में ले गए थे वो नाअहल थे। तरीक़ेकार बड़ा सिंपल था, कोई चार्जशीट नहीं, कोई डिफेंस नहीं, कोई अपील नहीं। कभी ब्रिटिश दौर में ऐसा नहीं हुआ था कि गवर्नमेंट सर्वेंट को इस तरीके से निकाला जाए। 1960 में नई पॉलिसी वज़ा हुई इंडक्शन की कि सिविल सर्विसेज में, नॉट सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेसी सारी में आर्मी से लोगों को इंडक्ट किया जाएगा और उनके लिए उनको इम्तिहान देने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीधे आ जाएंगे। और उसके बाद जब वो आएंगे तो उनको जिस बैच में वो ज्वाइन करेंगे सबसे सीनियर रखा जाएगा, उनको वहाँ की भी तनख्वाह मिलेगी, यहाँ की भी तनख्वाह मिलेगी, और भी कई मुराद थी इस किस्म की। इसलिए यूँ कहिए कि एक ट्रोजन हॉर्स जो था वो ब्यूरोक्रेसी में भेजा जा रहा था। आपका सवाल जो था कि क्यों, ट्रोजन हॉर्स जो है वो उसकी मंशा के मुताबिक चलेगा जिसने उनको यहाँ भेजा है। और उसके बाद आखिरी जो चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा, वो डीमोरलाइजेशन थी। उसके लिए सदर अयूब ने फर्दर यूज़फुलनेस रूल्स बनाए। और मज़ेदार बात यह है कि आप कितनी किताबें पढ़ें, इनका बहुत कम जिक्र है।
मुझे तो क्योंकि हमने देखा है और मेरी फाइलों में भी पढ़े हुए थे वो कई ज़माने में, फर्दर यूजफुलनेस रूल ये थे कि जब एक सरकारी मुलाजिम की सर्विस 25 बरस की हो जाएगी तो गवर्नमेंट ये फैसला करेगी, हुकूमत, कि क्या ये हमारे लिए मुफीद है या नहीं, और अगर मुफीद नहीं है तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। यानी जो मैं तसव्वुर पाकिस्तान की बात कर रहा था, कायदे आज़म का ये था कि आप स्टेट के मुलाज़िम हैं, हुकूमत के नहीं हैं। लेकिन सदर अयूब के फर्दर से रूल्स ने ये बता दिया कि आप हुकूमत के मुलाजिम हैं, आपको हुकूमत के अगर आप मुफीद नहीं है तो स्टेट जाए जहन्नुम में। और इससे हवा का रुख जो था वो टोटल ये डिमोरलाइजेशन, तो ये वो चीज़ थे। इसके बाद भुट्टो ने अय्याजा ने इन तीनों चीज़ों को आगे चलाया, भुट्टो ने और आगे चलाया। तो मेरा ख्याल है मैं यही बात ख़त्म करता हूँ। नहीं, इन तीनों को और आगे चलाया भुट्टो ने। अच्छा चलिए एक छोटा मुझे 4-5 मिनट और दीजिए। भुट्टो ने जी तो आखिरी हमला जो किया उसमें सेफ गार्ड जो थे ना जी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के, उनको ख़त्म कर दिया कि आप किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं पहले कर सकते थे, सिवाय उसको सफाई का मौका दिए बगैर आप नहीं कर सकते, ये ख़त्म कर दिया। बल्कि खड़े खड़े निकाल दिए जाते थे। बल्कि ये है कि भुट्टो ने जब 1972 में ख़त्म किया तो उसे 2-4 रोज़ पहले डॉक्टर मुबशर ने सरकारी मुलाजमों को एड्रेस करते हुए क्या कहा था जी? उन्हें कहा था कि आप लोग हमारी बात इसलिए नहीं मानते कि आप समझते हैं कि आप मुस्तकिल हैं और हम टेम्परेरी हैं। हमने तो कल चला जाना है, आपने हमेशा कायम रहना है। तो कहने लगे हम अब ऐसी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उनको वो रिफॉर्म ही कहा करते थे, हम ऐसी रिफॉर्म ला रहे हैं कि आप हमसे भी ज़्यादा आर्जी हो जाएंगे। और उसके बाद जो है ना, इसका भुट्टो का एक्ट जो आया था सिविल सर्विस का, वो 1972 का 72 का एक्ट, ये उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद इतना शोर मचा पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कि एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, उसने एक पॉलिटिकल साइंस के ऑफिसर को कहा कि जाके देखो हालात क्या हो रहे हैं वहाँ। उसका नाम मैंने कहीं लिखा था मुझे। उसने ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान इसके ऊपर आके काम किया। कैनेडी तो नहीं जी, कैनेडी जी। और वो जो था ना जी, उसने चूँकि उसने तो रिपोर्ट अपनी गवर्नमेंट को दे दी, लेकिन चूँकि इस चीज़ को स्टडी कर चुका था तो इसलिए उसने किताब बाद में लिख दी, जिसका मैं छोटा सा पैरा आपको पढ़ के बताता हूँ और उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी। चलिए यही से पढ़ देता हूँ। भुट्टो की धमाका खेज इस्लाहात अच्छी गवर्नेंस के बुनियादी असूलों के इस तरह परख से उड़ा रही थी कि एक अमेरिकन अदारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ ने पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर को इसका मुफस्सल जायज़ा लेने पर मामूर किया है। ये काम मुकम्मल कर लेने के बाद भी वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के मौजू पर रिसर्च करते रहे और बिलाखिर 1987 में उनकी किताब शाया हुई। इसके चंद जुमले काबिल तवज्जो हैं। फरमाते हैं कि इन इस्लाहात के एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी भुट्टो की सियासी गिरफ्त में आ जाए, जो अयूब का भी था और याया का भी था। इससे पहले 1972 में भुट्टो ने सरकारी मुलाजमों की बड़े पैमाने पर जो बरतरफियाँ की थी, उनके ज़रिए एक वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका था कि पीपल्स पार्टी की हमायत करो वरना कोई और मुलाजमत तलाश करो। ये पैगाम इस वजह से भी बहुत गरजदार और कड़वा बन गया था कि इस्लाहात से एक दिन पहले मज़ीद 18 अफसरान बरतरफ कर दिए गए थे। दूसरी तरफ भुट्टो ब्यूरोक्रेसी में दाखिले और तैनाती के अमल को भी कंट्रोल करने लगे। इसका मकसद भी यही था कि वो अपने सियासी मफादात को वसअत और तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इसलिए उन्होंने लैटरल एंट्री की नई स्कीम बना दी और साथ ही पेशा वाराना ग्रुपों के माबैन बामी तवादुर की इजाज़त दे दी।
भुट्टो के जहन की एक नई इख्तरा ये भी थी कि इन इस्लाहात में पब्लिक सर्विस कमीशन के बाज़ इख्तियारात एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को दे दिए गए ताकि सरकारी मुलाजमों की वो खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाए जो पब्लिक सर्विस कमीशन की वजह से उन्हें सियासी मुदाखलत से महफूज रखती थी। तो ये उस ढलान का ज़िक्र है जिसमें लुढ़कते हुए हमारी ब्यूरोक्रेसी ग्रामीय कदर से लेके गालियों तक आई थी। अब आप जो सवाल पूछना चाहते हैं। ये एक किस्से में बढ़ के जो पेशरफ्त हुई है, हमने को देख लिया, हमने यूनिफॉर्म को देख लिया, पाकिस्तान की आर्मी को देख लिया। अगर आप लॉ की टर्मिनोलॉजी में कहें तो जो उनके एटीट्यूड की बात आपने की, रेलेवेंसी इफेक्ट है एविडेंस एक्ट का, तो ये इनकी बात की जो भी इन्होंने डेवलपमेंट्स की रेलेवेंस इफेक्ट में इनके एटीट्यूड ज़ाहिर हो जाते हैं। ओके, आप इसमें यू सक्सीड इन योर एक्सप्लेनेशन, इन योर स्टेटमेंट्स, लेकिन इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, न्यू इंडस्ट्री फिलॉसफी है, नई इकोनॉमिक्स है, वेस्टर्न डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स और आगे जाती है। अब जो हर चीज़ को उन्होंने कैजुअलाइजेशन में आ गए और अब वो उनको आप अपॉइंटमेंट देंगे, अपॉइंटमेंट बड़ी कैजुअल देंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में लिया है, सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट स्टाइल आ गए और सोफिस्टिकेटेड के नाम से उन्होंने उनके कई बेसिक राइट्स खत्म कर दिए। अब वो तो और भी आगे चले जा चुके हैं। ये ठीक है आपकी बात, लेकिन एक बताइए मुझे चीज़ कि इस सारे चेंज के दौरान क्या गुड गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट चेंज हुई? जो देखिए, गुड व्हाट इज गुड गवर्नेंस कि स्टेट लुकिंग आफ्टर द सिटीजन, नहीं कहीं नहीं जी, नहीं, स्टेट लुकिंग आफ्टर द सिटीजन, वो कहीं। तो हम तो इस वक्त बात गुड गवर्नेंस की कर रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी गुड गवर्नेंस के लिए ट्रेन हुई थी उसको चाकरी, हुकूमत की चाकरी पे लगा दिया गया। बात सारी इतनी है जी। गुड चाहते ही नहीं थे जी, बस यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। हाँ जी, हासिल है कि आप सवाल जवाब पहले करें। जी आप बताइए। शाकिर हुसैन, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का। जी 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 सर, कालबेलमाना एक सवाल है आपसे। जी जी, ये तबलीग पाकिस्तान, हम सब तालिब इल्म ऑफ लाइफ हैं भाई। जी सर, तबलीग पाकिस्तान के पहले 11 साल जो कि ब्यूरोक्रेसी का सुनहरी दौर था, लेकिन उसके बाद हमारी ब्यूरोक्रेसी का ज़वाल शुरू हुआ और इसके ज़वाल की वजूहात में से जो एक अहम आपने बजस के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा कि आपके यहाँ अगर तालीमी इदारों में दिल नहीं लगता तो कौम का मुस्तक़बिल ठीक नहीं है। तो आज भी मैं देखता हूँ, तो इससे मुझे एक वो शेर याद आता है मीर का, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, हाँ, फिर इसके बाद चारा वो में रोशनी ना। तो सर आज भी मैं देखता हूँ कि तालिब इल्म में हमारी मतलब आगे उसमें दिल नहीं लगता। तो हम क्या करें, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि जिससे हम चिरागों में मज़ीद दोबारा से रोशनी ला सकें? ये आपसे। जी देखिए, दो चीज़ें आपने पहले एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया कि ब्यूरोक्रेसी का ज़वाल। मैंने कोशिश ये की थी, शायद मैं कन्वे नहीं कर सका, ब्यूरोक्रेसी का ज़वाल नहीं हुआ बल्कि इसको जूते मार मार के नीचे गिराया गया, एक बात। और दूसरी बात ये है कि यानी ये अंदर से ज़वाल नहीं था, ये बाहर से जैसे कोई आके घर में डाका मारता है और आपको कुर्सी के साथ बांध के तो आपसे काम करवाता है। ये दूसरी बात ये है कि बात एटीट्यूड्स की थी। जिन लोगों ने ब्यूरोक्रेसी के साथ ये किया उन्होंने कौम के साथ भी यही किया और उनके लिए अव्वलीन तरजीह ये थी कि लोगों की आंखें ना खुलें, इनको तालीम ना मिले और तालीम को दानिस्ता ख़राब किया गया। बर्जिस ने जो बात की वो दरअसल यही इशारा कर रहा था कि आपके मुल्क में ऐसी फोर्सेस हैं जो तालीम ख़राब कर रही हैं और इसलिए मुझे आपका मुस्तकबिल अच्छा नज़र नहीं आता। अब आपका सवाल ये है कि स्टूडेंट्स क्या करें।
جی تو وہ بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس نے تو اپنے انوائرنمنٹ میں کرنا ہے. انوائرنمنٹ ٹھیک کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہے کہ جیسی بھی انوائرنمنٹ ہو وہ اپنا کام کرتے جائیں. ہمارے پاس ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ جب لوگوں کے گھروں میں بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ سڑک کے کنارے بجلی کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے اور امتحان دیتے تھے اور پاس کرتے تھے. مطلب یہ ہے, اور اس طرح آپ یہ دیکھیں جو ادھر ویسٹ میں ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں, اس کے ساتھ ملازمتیں بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جہاں تک انوائرنمنٹ کو امپروو کرنے کا تعلق ہے اس کی ذمہ داری تو گورنمنٹ پہ ہے, لیکن جہاں تک اسٹوڈنٹ کا تعلق ہے ان کو جیل زندگی دوبارہ نہیں آنی, انہوں نے جیسے بھی ہو تعلیم حاصل کرنی ہے. جی سر, جو آج بھی جو طالب علموں کو دیکھتا ہوں چھوٹے 4-5 سالہ جو کہ اپنی ویٹ سے زیادہ بیگ میں ان کی کتابیں ہوتی ہیں, تو وہ اسکول جاتے ہوئے ان کو نظر آتے ہیں. تو پھر کیا جو ہمارے اور ایسے بھی کنٹریز کی مثال سننے کو ملتے ہیں جہاں پہ 10-10 سال تک 12-12 سال تک ان کو نصاب سے دور رکھا جاتا ہے اور ان کی بیہیویئر کے اوپر, ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کیے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں سسٹم ہی نیچے روٹ لیول سے ہی چینج کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر اگر کرنے کی ضرورت ہے تو کیا طریقہ کار اپنایا جائے؟ چلیے, آپ نے بڑی اچھی مثال دی. آپ نے بستے کا ذکر کیا نا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 4 بھائی تھے اور میں نے 10ویں کلاس میں کتابیں استعمال کی تھیں, سب سے چھوٹے نے بھی وہی کی تھی. وجہ یہ تھی کہ انگریز جو تھا وہ کریکولم کے اوپر خاص توجہ دیا کرتا تھا اور اس کے بعد بار بار ان میں تبدیلی نہیں کرتا تھا اور وہی کتابیں چلتی رہتی تھیں. ہمارے ہاں جب کرپشن شروع ہوئی تو ہر سال کتابیں بدلنے لگ گئے, نئی کتابیں چھپنے لگیں, ان چھپنے والوں کو پیسے بنانے کے لیے سب کچھ ہوا. تو ہمارے ہاں تعلیم کو دانستہ تباہ کیا گیا ہے, اور اس میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ ایسا اتنا وزن ڈال دیں کہ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. یہ اچھی بات آپ نے بتائی ہے, لیکن ایک چیز کی طرف آپ کو نہیں آئے, وہ یہ ہے کہ ہندو پاکستان ایک تھا جب پاکستان الگ ہوا اور آزادی کی تحریک چلی. ہندوستان الگ ہو گیا, آپ الگ ہو گئے. ہندوستان یہ فوج میرے ایک ساتھ بھی تھے فوجی, تو ملے جلے. پاکستان کے فوجیوں نے یہ رویہ اختیار کیا. ہندوستان کے فوجیوں نے جب کوئی بڑا ملک تھا کیوں اس رویے کی طرف آئے, اور وہاں پر نہ کالونیاں بنی, ڈی ایچ اے بنے, نہ وہاں پر کنٹرول فوج کا آیا سویلین پہ, اور وہ اپنے سسٹم کو برابر چلا رہے ہیں. نہیں, یہ بات دور چلی جائے گی. ایک نئی کتاب آئی ہے, نئی کتاب ہے The Garrison State, ذرا وہ پڑھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کیوں ہوا ہے. جی آپ نوجوان یہاں سوال یہاں سے لیتے ہیں. جی میرا کوشچن آپ سے سر کہ آپ نے 3 پھیزز انسٹیٹیوشن کی طرف سے ملک ترقی کرتے ہیں, ادروائز وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرانگنس از بہت مچ امپورٹنٹ. تو آپ نے ہسٹری دیکھیں تو ابھی پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو, بیوروکریسی کو اب جو ڈکلائن میں چلے گئے ہیں, اب ان کو ریوائیو کرنے کے لیے یا ان کو دوبارہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے, یہ آپ فرمائیے. دوسری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آکسفورڈ چلے, وہاں پر لے جاتے تھے بیوروکریٹس کو. اب جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیا, پوری دنیا مطلب مور اویئر ہو رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ ٹرمپ جیسا جو دنیا اس کو وہ کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے, ان کو آگے لا رہا ہے, مودی جیسے لوگوں کو. اسی طرح برازیل میں اسی طرح سے ایکسٹریمسٹ مائنڈ کے جو لوگ ہیں ان کو انسٹیٹیوشن کے سب سے اوپر ہیڈ بنایا جا رہا ہے. تو تعلیم کے فراوانی کے باوجود تعلیم حاصل کرنے والوں کو یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو آپ کی بات انسٹیٹیوشنس کی کروں گی, بالکل درست. اس طرح مولویوں کو لیا اور وہ پھر جو انہوں کو لائلٹی شو کرنے لگے ان کے اوپر انہوں نے مراعات دینی شروع کی. ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا جن کو ہماری زبان میں کہتے ہیں با اثر افراد. تو ایک با اثر افراد کا طبقہ 1958 کے بعد پیدا ہوا, اور اس کے بعد پھر جو گورنمنٹ آئی
वो अपने बाअसर अफराद पैदा करते थे। नतीजा ये हुआ कि किसी वक्त खाकी बाअसर अफराद हो जाते, किसी वक्त गैर खाकी हो जाते थे, किसी वक्त मौलवी हो जाते थे, किसी वक्त दुनियादार ताजिर हो जाते थे। तो ये बाअसर अफराद का अल्टीमेटली इतना अनहोली अलायंस हो गया कि आज वो माफियाज बन गए हैं। और वो बाअसर अफराद की टेक्निक ही यही है कि अदारे तबाह हो जाएं, इसलिए कि गवर्नमेंट के लिए वो वसीला लोग उनके पास जाएं, गवर्नमेंट के पास ना जाएं, अदारे के पास ना जाएं। तो ये तो एक हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। एक आखिरी बात पूछता हूँ, मैं अर्ज करूँ सर, नहीं मुझे जमाल साहब मुझे एक बात पूछता हूँ, हम असल में वक्त कम रह गया है और हम चूँकि नौजवानों मेरी एक बात पूछी, बानी पाकिस्तान का नाम आज भी दिया जाता है, बानी पाकिस्तान। बानी पाकिस्तान के साथ क्या फौज ने कोई साथ नहीं दिया था? देखिए, फौज का ये मौजू नहीं है आज का। मुफ्ती साहब जी, जो आप जवानों से बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये बताइएगा कि असल में इसमें थोड़ा शख्सी रंग दीजिए इसको आप, क्योंकि अभी तक हम जी, आप सवाल पूछे तो अभी हम इजमाली इजाज़त ले रहे हैं। आप जिस दिन पहले दिन अफसर बन के ज़िले में गए थे वो दिन को याद दिलाइए। अच्छा चलिए, एक छोटा सा वाक़या बताऊं जी। कौन सा ज़िला था ये भी बता दीजिएगा। नहीं, देखिए जी, अफसर बन के मैं ज़िले में नहीं गया, उससे पहले हमारी असल प्राइमरी क्लास सब डिवीज़न होती है जी। तो सब डिवीज़न में मैं गया पिंडी घेप में, वहाँ राजा गज़नफ़र अली ख़ान होते थे जी। ये उससे पहले सदर अयूब ने एब्डो और पोडो के तहत लोगों को सज़ाएं दी थी, और फिर जो लोग चेंज ओवर कर गए थे, क्रॉस ओवर कर गए थे, तो राजा गज़नफ़र अली ख़ान उनमें से एक थे जी। और इसलिए उनको रूस में सफ़ीर बना दिया गया था। लेकिन वो चेयरमैन थे टाउन कमेटी के, उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा नहीं दिया था, बल्कि टाउन कमेटी उनके मफादात का ख्याल रखती थी। तो नतीजा ये हुआ कि राजा गज़नफ़र अली ख़ान बड़ी जल्दी मुझसे नाराज़ हो गए। और वो सिविल सर्वेंट थे राजा साहब जी, अम्बेसडर थे रशिया में जी। पिंडी गेप कैसे आ गए वो? नहीं जी, मैं पिंडादन खान की बात कर रहा हूँ। अच्छा। इसी तरह हमारे एक और कोलीग थे सज्जाद साहब, वो पिंडी घेप में थे। पिंडी घेप जो है ये अटक, इसके जो हैं काफ़ी ताकतवर सियासी लोग थे, और उनको भी वहाँ इसी किस्म की प्रॉब्लम थी सज्जाद साहब को। तो उस ज़माने में जो सरकारी मुलाजिम थे, अफसर थे, वो अपने इख्तियारात के मुताबिक फ़ैसले किया करते थे। तो कमिश्नर को ये इख्तियार हुआ करता था कि वो अपने डिवीज़न में सब SDM की ट्रांसफ़र ख़ुद कर सकता था, गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अब उधर से भी उनको हमारे कमिश्नर जो थे वो महसूस करते थे कि ये दोनों ऑफिसर ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास वो चले गए ऊपर वाले तो वो दोनों को नुकसान पहुंचेगा। तो उन्होंने हम दोनों का आपस में तबादला कर दिया, कमिश्नर ने अपने इख्तियारात करते हैं हमें बचाने के लिए। अब पिंडी घेप से फिर मेरी ट्रांसफ़र कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। उस वक्त तक ये रिफॉर्म्स आ चुकी थी जी, लैंड रिफॉर्म्स। बड़ा शोर था कि कमाल हो गया है और लोगों को लैंड रिफॉर्म में ज़मीनें मिल रही हैं। तो एक दिन मैं अदालत में बैठा हुआ था और ज़ाहिर है केस चल रहा था, काफ़ी लोग थे। तो एकदम एक आदमी दरवाज़ा खोल कर उसने शोर शराबा शुरू कर दिया। तो अब सब लोग चौकन्ने होकर सुनने लगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, सामने आके बात करो। उसने कहा जी किस्सा ये है कि फ़लाँ गांव में हमें लैंड रिफॉर्म्स के तहत ज़मीनें हमारे नाम मुंतकिल हुई हैं। हमारा जो वडेरा है उसने 40-50 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद किया हुआ है, और वो हमें ये कह रहा है कि वो सारी ज़मीनें ये अंगूठे लगाओ कि तुम लोगों ने मुझे बेच दी हैं और ताकि तुम लोगों को ना मिले, और वो अभी उधर बंद हैं। मैं किसी तरह रोशनदान तोड़ के यहाँ आया हूँ, पुलिस वाले मेरी बात नहीं मानते, और मैं किसी ने कहा अदालत में चले जाओ। मैंने उसकी स्टेटमेंट लिखी और स्टेटमेंट लिख के ऑर्डर पुलिस को दिया कि इसको वेरीफाई करो, अगर ये ठीक कहता है तो उन लोगों को रिहा करवाया जाए।
वो ज़माना जो था आपने नहीं देखा, उस वक्त टेलीफोन नहीं होते थे, एक छोटा सा इस तरह चोंगा लटका होता था, उसको चरखी घुमाई जाती थी, और वो भी मेरी अदालत में था, घर पे नहीं था, और घर जो था वो अदालत से तकरीबन 400-500 गज दूर था। तो उसी रात कोई 11 बजे के करीब आया मेरा चौकीदार कि जी लाहौर से कॉल आ रही है तो आपको बुलाया जा रहा है। मैं गया तो वहाँ सेक्शन ऑफिसर जो थे लाहौर से, उस वक्त 1 यूनिट का इलाका था, ज़माना था, तो उन्होंने कहा भाई यू हैव बिन ट्रांसफर्ड और आपको ऑर्डर ट्रांसफ़र के जो हैं वो मिल रहे हैं, तो आपको मिल जाएंगे एक दिन में। रात कितने 11 बजे तकरीबन। खैर मैं समझ गया किस वजह से हुई है ट्रांसफ़र। उसके बाद मैं घर की तरफ चला गया, सोच रहा था कि सुबह कमिश्नर डीसी से बात करूंगा, SK महमूद हमारे डिप्टी कमिश्नर थे, तो इतने में चौकीदार फिर आ गया कि जी दोबारा फ़ोन आ गया। तो फ़ोन इस तरह नहीं मिलता था, आप जाके चरखी घुमाते थे, आपको आधा घंटा इंतज़ार करना होता था, वो मिलाता था। खैर तकरीबन 1 बज गया जी तक, जब मुझे दूसरी कॉल आई तो वही ऑफिसर बोल रहे थे। उन्होंने कहा जी, नवाब कालाबाग गवर्नर थे, उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब को हुक्म है कि सुबह 4 छोड़ दें, शाम से पहले अपनी सब डिवीज़न से निकल जाएं, और पिंडी गेट से सब डिवीज़न आने तक, खोड़ आने तक काफ़ी वक्त लगता था। तो मतलब ये था कि मैं अगर 12 बजे से देर हो गई तो मैं सब डिवीज़न नहीं। तो इस किस्म के हालात में से हम गुजरे। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और जो सामीन में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आप मशरक़ी पाकिस्तान में भी रहे, और एक और जहद जो आपकी शख्सियत की है कि एक तो सरकारी और इंतज़ामी है जहद, और दूसरी अदबी जहद है कि आपकी मुतअद्दिद किताबें हैं, आपने एक बड़ा अपने तजर्बात को जो है वो कलमबंद भी किया है। कुछ मशरक़ी पाकिस्तान में अपने तजर्बात के बारे में हमें बताएं, क्योंकि वो भी एक ऐसा दौर है जो मफकूद हो चुका है। जी मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि एक तो वो ट्रेजेडी हुई, और दूसरी उससे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि सारी हुकूमतों की पॉलिसी ये है उसके बाद की कि इसको भूल जाया जाए, इसके बारे में बातचीत ना की जाए। मैंने 4 किताबें लिखी हैं, लेकिन डर के मारे, खौफ के मारे कोई उनका हवाला नहीं देता, चूँकि आपसे गवर्नमेंट नाराज़ हो जाती है। तो अब मैं उसका ज़िक्र करता हूँ। मुख्तलिफ़ अंदाज में किताबें लिखी हैं जी। एक तो डायरी है, रिपोर्टाज है कि जब फॉल हो रहा था ढाका का, तो 3-4 दिन में हम वो न्यूट्रल जोन में थे, तो लोग जो थे उनके साथ क्या बीत रही थी, चेहरे के उन्वान से है जी। वो सिर्फ 4 दिन का जिक्र है फॉल का। उसके बाद फिर वक्त गुज़रता गया, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट दफना दी गई, वो कहीं 26-27 बरस बाद हुई। इस अरसे में मैं 94 में रिटायर हो गया, तो मैंने कुछ मज़ामीन वगैरह लिखे डॉन में जो शाया होते थे। और जब हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई तो वो जो मैंने अपनी किताबों में लिखा था उसकी तायीद होती थी, और जो मैंने लिखा था उसको चंद अल्फाज में मैं बता देता हूँ। सारी किताबों का जो मजमू है वो ये था, नंबर 1 कि मशरक़ी पाकिस्तान के लोग बहुत पक्के मुहिब वतन, बहुत अच्छे पाकिस्तानी थे। दूसरी बात ये कि वो अलहदा नहीं होना चाहते थे। तीसरी बात ये कि वो गुड गवर्नेंस चाहते थे, और चाहते थे कि उस गुड गवर्नेंस के फ़ायदे उनको भी मिलें। और इसी सिलसिले में वो जो थे असेंबलियों में बड़ी तकारीर किया करते थे, और ख़ास तौर पे जब सीटो सेंटो वगैरह 1954 में पाकिस्तान जॉइन कर रहा था, तो सबसे ज़्यादा मुखालफत बंगालियों ने हमारी असेंबलियों में की थी। उस वक्त की अखबारें उठा के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यानी वो वोकल थे। पहली बात ये थी वोकल थे, दूसरी बात ये थी मुहिब वतन थे, कहते थे जो फैसले करो वो मुल्क के मफाद में। और ये वोकल होना जो था ये उन 3 क़ुव्वतों को पसंद नहीं था जिनका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। तो नतीजा ये है
कि ये सोच पैदा होनी शुरू हो गई थी, जिसका मैंने इशारतन जिक्र भी किया है कि भाई ये जो हैं इनसे जान छुड़ा ली जाए तो बेहतर है। और 1971 में जो हुआ वो हमसे अलहदा नहीं हुए, बल्कि उनको धक्के दे के निकाला गया। और चूँकि पॉलिसी उस वक्त हुकूमत की ये थी कि अगर हम उनको सरेंडर करेंगे तो हमारे लिए बड़ी जागसाई की बात है, तो बेहतर है कि हिंदुस्तान से मसनूई जंग छेड़ के हिंदुस्तान को सरेंडर कर दिया जाए। ये नुक्ता नज़र मैंने अपनी चारों किताबों में लिखा है, लेकिन इसकी कोई प्रोजेक्शन लोग नहीं करते। कुछ आखिरी दिनों के बारे में बताइए, वो 4 दिन जो आपके जो आपने डायरी लिखी है उसके बारे में कुछ बताइए। यानी कुल कितना अरसा आप रहे उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में और किस मैं पोजीशन जी में? मशरक़ी पाकिस्तान में जब आर्मी एक्शन हुआ है ना जी 25 मार्च को, तो उसके बाद तो हालात हुकूमत के हाथ से निकल गए थे। तो सडनली एक सोच निकली कि कुछ सरकारी मुलाजमों को, अफसरों को यहाँ से भेजा जाए। तो कोई 25-30 के करीब ऑफिसर थे जिनको उधर फ़ौरन ट्रांसफ़र किया गया, मैं भी उनमें से एक था। और मुझे वहाँ जो लगाया गया वो प्रोविंशियल सेक्रेटरी एजुकेशन था जी। और उसके बाद फिर हालात पहले तो बहुत इम्प्रूव हुए और उसके बाद बिगड़ने लग गए, चूँकि वही गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ का दखल यही था। तो फिर जंग आ गई। जंग के बाद हम POW बन गए। 2 साल मैंने हिंदुस्तान की कैद में गुजारे और उसके बाद वापस आए। तो मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में दरअसल मैं नटशल आपको अपनी नुक्ता नज़र बता दिया है, वगरना जब तक 3-4 किताबें पढ़े नहीं आपको अंदाज़, उसमें कुछ ड्रामे भी हैं, कुछ अफसाने भी हैं, डायरी भी है, पूछताछ भी हैं। तो मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब से फ़ायदा उठाया गया है। सर, अब तक जो मेहमान आते रहे इस प्रोग्राम में, तो वो अपने बचपन के वही वाक़यात वो ज़रूर बताते थे, तो आप हमें कुछ बताइए शुरू से कि बचपन कहाँ गुजरा है। चलिए, आपने एक और दुखती रग छेड़ दी है। देखिए, एक और किस्सा है जिसको हमारी तारीख़ से हज़फ किया जा रहा है। बिल्कुल आपको कहीं नज़र ही नहीं आता, कहीं ज़िक्र ही नहीं होता, कहीं आप कोई तारीख़ पढ़े तो। और वो हमने बचपन में देखे। देखिए, बचपन में मेरी पहली याद जो है ना, वो घर में बड़ी सी एल्बम, बड़ी खूबसूरत एल्बम, सुनहरी तस्वीरों वाली, जो बड़ी उस ज़माने में शाया हुई थी। वो इसलिए कि अल्लामा इकबाल की डेथ 1938 में हुई थी जी। तो वो एल्बम में उनकी लाइफ के बारे में तस्वीरें थी जी। तो वो जो था, एक वो याद थी और दूसरी याद ये थी कि खाकसार तहरीक जो थी वो अपने पूरे अरूज पे थी। मैं 1939 की बात कर रहा हूँ जी। और तीसरी ये थी कि सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी। लेकिन जिसकी तरफ मैं हवाला दे रहा हूँ तो खाकसार तहरीक का है कि हमने जो खाकसार तहरीक को देखा है और जिस तरह आजकल हमारे लीडरों ने कौम का किरदार बिल्कुल पस्त बल्कि अर्ज़ल रज़ील कर दिया है, इस तरह अल्लामा मशरक़ी ने कौम का किरदार बिल्कुल अफजल तरीन कर दिया था। खिदमत खल्क का जज्बा बेलचे से, और हमने जो कुछ देखा है उस ज़माने में, जिस तरीके से खिदमत खल्क से वो लोगों की खिदमत किया करते थे, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो। तो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। अहमद नदीम कासमी साहब ने मुझे बताया ये। खाकसारों का ये था कि वो तहरीक चंदे से नहीं चलती थी जी। उसमें यह था कि हर शख्स को अपनी जेब से अपना ख़र्चा खुद करना पड़ता था, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप किसी से जो कोई खिदमत करें उसका इफ़्ज़ाना नहीं लेना, आपने कोई कंपनसेशन नहीं लेनी। अगर आप किसी के घर गए हैं और आपने उनकी खिदमत की है कोई, तो आप पानी का गिलास भी नहीं मांगेंगे। और
अगर आप किसी के घर खाने के लिए गए हैं तो आप खाने की कीमत अता करेंगे, और इसके ऊपर अमल होता था। मैं वो अहमद नदीम काज़मी का किस्सा बताने लगा था। वो उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे ये किस्सा बताया। तो वो कहने लगे उन दिनों मैंने नया नया लिखना शुरू किया था, उनका गांव अंगा उधर सरगोदे के पास था। तो एक दिन दोपहर के वक्त को आफ्टरनून में दरवाज़ा खटखटा, जून का महीना, सख्त गर्मी, मैं बाहर निकला तो ये भी नौजवान थे उन दिनों, तो 2 नौजवान खड़े थे। तो उनमें से एक ने कहा जी मेरा नाम नून मीम राशिद है, मैं भी शायरी करता हूँ, और एक कोई दूसरे थे उनके साथ में, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बताया था। कहने लगे मैं उनको अंदर ले आया। तो मैंने जाके वालदा से कहा कि शरबत कोई दे दे, चूँकि बड़ी गर्मी में आए हैं। तो कहने वो बैठ गए, तो शरबत के 2 गिलास मैंने अंदर से ला के रख दिए। तो उन्होंने गिलास उठा लिए, एक जेब से एक चवन्नी निकाल के रख दी। तो मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? वो कह लगे जी हम खाकसार हैं, हमें हुक्म है कि हम नहीं ले सकते, तो हम इसके पैसे देंगे आपको। कहने लगे इस पर बहस शुरू हो गई। जितना वक्त बैठे वो बेचारे मुझसे अदबी तारफ़ के लिए आए थे। कहने लगे तारफ़ क्या होता है, इसी पे बहस होती रही। अल्टीमेटली चवन्नी उन्होंने जेब में डाली, गिलास पासे ही धरे रह के चले गए। तो ये खाकसार तारीख थी। आपने कभी उस तारीख का किसी आप हिस्ट्री की किताब में देखें जिक्र पड़ा है? और उनसे अंग्रेज़ हुकूमत कितनी यानी खौफज़दा थी, और किस तरीके से उन्होंने कुचला उनको, इस तरीके से इतने रुथलेसली कुचला है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं जी, लेकिन हमारी हिस्ट्री उसका क्यों जिक्र नहीं करती, मैं आपसे ये पूछता हूँ। वो मैंने अभी जिक्र किया था के अजीज़ की किताब मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वो ज़रा आप पढ़ें तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का इंकशाफ होता है कि हमारे सामने प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है और असल हकीकत क्या है। मुफ्ती साहब किसी 1, 2 या 3 शख्सियात का जिक्र करें जिन्होंने आपको बहुत ज़िंदगी में मुतासिर किया हो। ये खाकसार तहरीक तो जाहिर सी, इसके अलावा कोई शख्सियात जी हाँ जो आपकी ज़िंदगी में जिनसे आप मिले हों, बर्जेस से जैसे मिले, उनका जिक्र आ गया, कोई और ऐसे जिन लोगों ने कोई बहुत आप पे असर छोड़ा हो? मसल मैं आपको बताता हूँ जी, मैं जब 6ठी क्लास में था तो हमारा एक उस्ताद होता था जी, डेरा गाजी खान का, रावलपिंडी में। उस ज़माने में हमारे वालिद रावलपिंडी में पोस्टेड थे, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। और ये वो ज़माना था जब मेरी नेशनल मूवमेंट बड़ी तेज़ी में थी, तो इसलिए हम सारे इस्लामिया हाई स्कूल जो था और रावलपिंडी में, वो उस वक्त कंपनी बाग होता था, उसके सामने बड़ी पुरफज़ा जगह होती थी, और वहाँ बड़े बड़े जलसे मुस्लिम लीग के और वैसे हुआ करते, तहरीक पाकिस्तान के। तो वो 6ठी क्लास में हमारा उस्ताद जो होते थे, बड़े डिवोटेड उस्ताद हुआ करते थे उस ज़माने में, खाली मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सारे। तो एक दिन उसने कहा कि देखो बच्चों, किस्सा ये है कि कोर्स में हमारे थोड़ी सी कमी रह गई है, मैं ख़त्म नहीं करवा सका, तो आप इस तरह करें कि स्कूल से आधा घंटा पहले जब स्कूल शुरू होता है तो आ जाया करें, मैं आपकी स्पेशल क्लास ले लिया करूँगा। तो हमने जाना शुरू कर दिया। मैं एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, चौथे दिन मैं निकला तो मेरे वालिद साहब ने देख लिया। उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं, उस टीचर ने कहा कि सिर्फ स्पेशल क्लास। कहने लगे वो किस टाइप का टीचर है जो स्पेशल? उस ज़माने में ट्यूशन की सख्त मुखालफत होती थी, और हमारे वालिद साहब जो थे वो तो कहते थे ट्यूशन का नाम ना लो। कोई स्कूल वाला पसंद ही नहीं करता था कोई लड़का ट्यूशन करे, इसलिए कि वो स्कूल की बदनामी होती थी कि जिस बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत है इसका मतलब है कि स्कूल के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, तो इसलिए ट्यूशन एक शजर ममनुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता, जो चलो बैठो अंदर। तो मैं नहीं गया। क्लास में गए, टीचर ने पूछा कि तुम सब क्यों नहीं आए? मैंने कहा जी मेरे वालिद साहब ने मना कर दिया था। कहने लगे बेंच पे खड़े हो जाओ। मैं बेंच पे खड़ा रहा सारा वक्त। वापस आया, अगले दिन मैं फिर जा रहा था, तो वालिद साहब ने देख लिया तो कहने लगे क्यों तुम फिर? मैंने मना जो किया। मैंने कहा कल मुझे सज़ा मिली। कहने लगे अच्छा जाओ। मैं चल पड़ा, पीछे पीछे वो भी चलते आए,
और आगे वो सीधे हेड मास्टर के पास चले गए और उनको शिकायत की कि आपका टीचर जो है वो ट्यूशन क्यों कर रहा है। इतने में बुलावा हमारे टीचर को भी हो गया। अच्छा, मुझे भी लेके गए वो हेड मास्टर के पास। तो अब डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल खड़ा है, हेड मास्टर खड़ा है, बीच में मैं खड़ा हूँ। इतने में वो टीचर जो है मुलजमों की तरह पेश हो गया। उससे पूछा तो उसने कहा जी किस्सा ये है कि मेरी क्लास में चंद लड़के बहुत कमज़ोर हैं, मैं उन पे ज़्यादा तवज्जो देता रहा हूँ तो इसलिए मैं कोर्स पूरा नहीं कर सका, तो इसलिए मैं अब इस तरीके से कर रहा हूँ। तो हमारे वालिद साहब ने कहा जी कि ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपको नहीं करना चाहिए। उसने कहा जी मैं इंस्पेक्टर के लड़के के लिए एक्सेप्शन नहीं दे सकता। गुड, वेरी गुड। ये मेरे सामने बात इस तरह हुई। उसने कहा जी आप इजाज़त दे या ना दें लेकिन मैं सज़ा दूंगा। उसके बाद मैंने रोना शुरू कर दिया ये देख सूरत हाल देख के। तो खैर मुझे तो वापस भेज दिया गया। मैं 6ठी क्लास में था। तो मैं फिर वापस आ गया, लेकिन अगले दिन से वालिद साहब ने, और वो 15 दिन की क्लास थी और 15 दिन का कोई फीस, एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं ली जाती थी हमसे। तो अब आप कहते हैं कि कौन सी चीज़ें आपकी जहन पे असर डालती हैं। इस किस्म के टीचर, ये एटीट्यूड जो थे, एक तो मेरे वालिद का एटीट्यूड, दूसरे टीचर का एटीट्यूड, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक थे। क्योंकि और वो ये कि उस ज़माने में लोग जो थे उनका जो नुक्ता नज़र होता था और वो समझते थे कि ये कानून और आइन के मुताबिक है, उस पर अड़ जाते थे और उनमें ज़रूरत होती थी कि वो बात कर लें। ख़वातीन में से कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो, कम से कम वो जेंडर बैलेंस आजकल बहुत ज़रूरी है। जेंडर बैलेंस पहले नहीं है। और कोई नौजवान को सवाल को पूछना चाहे कि मुस्तकबिल के हवाले से? इसी पे ज़्यादा सुनना चाहेंगे। मेरे ख्याल में लोग जो है कुछ उम्मीद भी दिलाते हैं। सर जी जी, सिविल सर्विसेज तक पहुंचने के लिए सर आपने जवानी में क्या मेहनत की सर, किस तरह आपने मैनेज किया पढ़ाई को, और क्यों पसंद किया आप? इंस्पायरेशन कौन था सर आपका? जो पंजाबी, जो बर्जिस ने पंजाब, कहा, नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप वो मशवरा लें, उस पर अमल करें। पंजाबी में लफ्ज़ है कल्लू करे कवलियाँ तो रब करे सवालियाँ। तो मेरे जी आज उस वालियाँ वही है ना जी, वो क्योंकि एक जगह इला वो किस्सा ये है जी कि जैसे होता था उस ज़माने में कि पेरेंट्स कहते थे अच्छा ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो हमारे पेरेंट्स ना ये डॉक्टर, तो मैं भी शुरू से डॉक्टर बनने पे लग गया था। तो कि मैं डॉक्टर बनूंगा। उसके बाद जब मैट्रिक में पहुंचे तो साइंस के साथ मैंने सब्जेक्ट हाइजीन फिजियोलॉजी लिए, इसलिए कि डॉक्टर बनना है। एफएससी करने लगे तो मैंने एफएससी मेडिकल किया था क्योंकि मैंने डॉक्टर बनना है। उसके बाद जब इम्तिहान हुआ तो यूनिवर्सिटी में मेरी पोजीशन कोई सेकंड पोजीशन थी मेडिकल स्टूडेंट्स में, और बड़ी मुझे वजीफ़ा वगैरह भी मिला। तो मैं बड़ा खुश कि जी मैं यहाँ फिर बात एटीट्यूड्स की आ जाएगी, मैं आपसे आगे अर्ज़ करूँगा। मैं बड़ा खुश कि मेरा मेडिकल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला फ़ौरन हो जाएगा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा जी आपका तो दाखिला नहीं हो सकता, मिनिमम एज पता नहीं 15 या 17 जो भी थी, तो आपके उससे कुछ महीने कम है, 1.5 या 1 साल कम है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, वापस आ गया कि और कि इधर उधर बात की तो पता चला कि प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ कि अगर प्रिंसिपल चाहे तो वो उसको वेव कर सकता है। तो मुझे ये भी पता चला कि कर्नल इलाही बख्श जो थे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के, वो किसी ज़माने में मेरे वालिद के शागिर्द रहे थे। तो मैं अपने वालिद के पास गया, मैंने कहा जी ये सूरत हाल है। तो मेरी बात सुन के सोचते रहे, कुछ नहीं बोले। 1.5-2 घंटे बाद कहने के भाई देखो तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आई है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पोजीशन है, वजीफ़ा मिला है, एज कम है ना, तो तुम बीएससी में दाखिल हो जाओ, एज पूरी हो जाएगी तो उसके बाद दाखिल हो जाना वहाँ।
मेरी वालदा ने भी कहा कि आप प्रिंसिपल को कह क्यों नहीं देते। वो कहने लगी देखिए मैं 40 साल से उसे नहीं मिला, अब अगर मैं उसके पास ये दरख्वास्त लेके जाऊं कि ख़िलाफ़ कानून काम करो तो मैं भी बुरा महसूस करूंगा, वो भी बुरा महसूस करेगा, तो ये क्या है, इसमें दाखिल हो जाए 2 साल में इसकी एज पूरी हो जाएगी। और फिर जब मैं दाखिल होने लगा तो मुझे कहने लगे देखो तुम्हारी दाखिला तो हो जाएगा, तो बेहतर है अपनी ज़रा इल्म को वसी करने के लिए थोड़ा सा तुम नॉन मेडिकल कर लो, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री कर लो। उसमें मुझे बड़ी मेहनत करना पड़ी, लेकिन वहाँ हमारे एक ट्यूटर होते थे प्रोफेसर हमीद अहमद ख़ान, जो बाद में वाइस चांसलर बने। तो ट्यूटर का मतलब ये होता है कि वो एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ वगैरह को देखते हैं। तो वो वहाँ मैंने एक मज़ाहिया मज़मून पढ़ दिया तो उन्होंने मुझे उसी वक्त मुकर्रर कर दिया असिस्टेंट एडिटर ऑफ द इंग्लिश सेक्शन, जिसके वो इंचार्ज थे। तो मैं किताबें पढ़ा करता, लिखने लिखाने का कभी सोचा ही नहीं था, ख्याल ही नहीं था। और जब असिस्टेंट एडिटर मुकर्रर कर दिया तो जो रिसाला आया पहला, तो उसमें अपने मज़ामीन भी थे और सब कुछ बड़ी मेहनत से लिखे विखे। तो उससे मेरी थिंकिंग सारी बदल गई कि भाई ये तो असल उस ज़माने में एक होता था इकबाल सिंह, जिसके पाकिस्तान टाइम्स में भी आर्टिकल आया करते थे और वैसे भी इंटरनेशनली वो रिप्रोड्यूस हो करते थे, बड़ा ऊंचा नाम था। तो मैंने कहा भाई इकबाल सिंह क्यों ना बना जाए, तो मैंने जर्नलिज्म की तरफ, तो मैंने सब छोड़ा के मैंने कहा जी मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। तो मैंने उसके बाद अपना BSc में भी मेरा वजीफ़ा आया, मेडिकल कॉलेज अप्लाई नहीं किया, मैं जर्नलिज्म में चला गया। तो इस किस्म की मैं हरकतें करता रहा हूँ। तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद मैंने MA इंग्लिश किया, बीच में पॉलिटिकल साइंस वगैरह का, तो वो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन जो थी उसकी वजह से मुझे कंपटीशन में फ़ायदा रहा, असल बात ये है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप ब्रॉड बेस करने के लिए अपना इधर उधर करना शुरू कर दें, उसमें नुकसान भी पहुंच सकता है। बुनियादी बात यह है कि जो रिक्वायरमेंट हैं, आप अगर कंपटीशन देना चाहते हैं तो जो रिक्वायरमेंट हैं उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपना इल्म हासिल करें। मसलन मैं आपको बताऊं, उस ज़माने में रेडियो बड़े कम होते थे, हमारे घर में रेडियो नहीं होता था। लेकिन जब मैं पता चला कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो फ़ौरन घर में रेडियो ख़रीदा गया ताकि ये BBC की ख़बरें वगैरह सुन सकें। तो मतलब ये होता है कि जिस किस्म की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप अपने इल्म को ब्रॉड बेस करें, दैट्स ऑल। जी सर, आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान, एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली प्योर्ड है? जियोपॉलिटिकल प्योर्ड है मतलब सेंसिटिव एरिया है पाकिस्तान, मतलब एक तरह से ज्योग्राफी के मतलब हिस्सा तरीन जगह पर मतलब लोकेटेड। हाँ ठीक है, जो कि एशिया और यूरोप को मिला है। तो आप ये नहीं समझते हो कि ज्योग्राफी ने ही क्या नाम है मिलिट्री सेक्टर को पुश किया है कि आप जाके डिसीजन मेकिंग में अपना इन्फ्लुएंस क्या नाम है मैनिपुलेट करें? The curse of geography. नहीं भाई, आपकी बात ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है ना हमारी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बात सारी ये है कि घोड़ा जो होता है ना भाई, अरबी घोड़ा भी होता है जो बहुत अच्छा गिना जाता है, नेज़ाबाजी वाला घोड़ा भी होता है, दूसरा भी। लेकिन घोड़ा ये देखता है कि उसके ऊपर सवारी कौन कर रहा है, फिर अगर सवार अच्छा होगा तो घोड़ा उसके मुताबिक काम करेगा। लोकेशन तो हमारी अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट्स अगर हमारी अच्छी नहीं होंगी, पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होंगी, तो उन लोकेशन का हम फ़ायदा नहीं उठा सकें, बल्कि दूसरे उस लोकेशन को काबू करने के लिए आ जाएंगे। सर, इस सेशन में तो हमने सिर्फ इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया है, और इंस्टीट्यूशन में भी हमने मतलब दो इंस्टीट्यूशन का स्पेसिफिकली जिक्र किया मतलब और डिसीजन में, जिसमें एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है और दूसरी जो इंस्टीट्यूशन है वो सिविल इंस्टीट्यूशन है, यानी सिविल मिलिट्री रिलेशन। एक तरह से मतलब होल डिसीजन में मैंने तो यही गेन किया। नहीं, तीसरी इंस्टीट्यूशन का बिल्कुल आपने फ्यूडल का जिक्र किया, लेकिन फ्यूडल का तो मतलब आज के ज़माने में बिल्कुल रोल न होने के मतलब सिंध में है और पंजाब के साउथ पंजाब वाली साइड पे मतलब समहाउ इन्फ्लुएंस है, और जिस जगह से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका कौन सा इलाका? गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान, हाँ। वहाँ क्या नहीं है? फ्यूडलिज्म नहीं है। फ्यूडलिज्म बिल्कुल नहीं है। मतलब पहले दौर में था, मेरे मतलब दादा के ज़माने में था, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल।
बिल्कुल भी हाँ, ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि आप क्या ये नहीं समझते हो कि उनको मतलब जोग्राफी ने उनको मजबूर किया कि आप आके मतलब यहाँ पे अपना पॉलिसी मेकिंग में या पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में अब अपना इन्फ्लुएंस मैनिपुलेट करें? नहीं, वो बात ठीक है। बात यह है कि फ्यूडलिज्म आपने जिक्र किया, फ्यूडल लॉर्ड जो थे, और सर मेरा मतलब मैं इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा कि आप मतलब फ्यूडल में भी चंद एक फ्यूडल लॉर्ड ऐसे थे जो कि कलिज्म के खिलाफ में थे, और बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड मतलब स्पेशली फ्रॉम केपीके वाले साइड वो कलिज्म के फेवर में था। मैं समझ नहीं सका, बता। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जोग्राफियाई जो सूरत हाल है उसकी वजह से एक तीसरी कुव्वत को फौज को मौका मिला कि वो मुल्क की मामलात में मुदाखलत करे। नहीं जी, नहीं, ये बात नहीं है। द कर्स ऑफ ज्योग्राफी। नहीं, ये वो बात नहीं है। ये जो सदर अयूब ने अपनी किताब फ्रेंड मास्टर में बात लिखी है, बिल्कुल बात वही है। और भी लोगों ने, बाहर वाले लोगों ने जो किताबें लिखी हैं पाकिस्तान के बारे में, उसमें यही कहा है कि उनको एम्बिशन इतनी जल्दी जो उनको मिल गई थी तरक्कियाँ कि वो ज़्यादा एम्बिशस हो गए थे। तो ये बात सिर्फ इतनी है, और कोई किसी वजह से या एक और एलिमेंट है अपनी वो आपकी लोकेशन वाली बात के मुताबिक है। वो ये है कि ये जो इलाका था ना, जो आजकल पाकिस्तान है, जो पहले वेस्ट पाकिस्तान था, इसके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी रस्साकशी चल रही थी। ब्रिटेन को ख्याल था कि उधर से रशिया जो है वो आ जाएगा, और वो आने की कोशिश कर रहा था वार्म वाटर के तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए दोनों ने अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट बना दिया था। लेकिन अंग्रेज़ जो था वो इस अफ़गानिस्तान को काबू करने की कोशिश करता रहा था। 3 जंगें लड़ी इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ, और तीनों में इनकी पिटाई हुई। तो ये इलाका जो है, ये चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ था और इसको रशिया के साथ वो मुकाबले के लिए तैयार कर रहे थे, तो यहाँ की फ़ौज जो थी बाकी फ़ौज के निस्बत जो थी उनको ज़्यादा ट्रेनिंग, ज़्यादा ऑटोनॉमी और ज़्यादा जिसको कहते हैं ना गैरिजन की मेंटालिटी बहुत ज़्यादा थी। तो वो उस हद तक आपकी लोकेशन की बात ठीक है। अच्छा, हम तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। जो आप एक सवाल हम लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। जी सर, जैसे कि आपने फरमाया कि हमारी एक तारीख का एक अहम हिस्सा अभी तक लिखी ही नहीं गई, डॉक्यूमेंट ही नहीं गई, और अगर लिखी गई है तो मैनिपुलेटिव फॉर्म में उन चीज़ों को एक ख़ास बयानी को तरजीह दी गई। तो एक तालिब इल्म अपनी इल्म में इजाफे के लिए या एक मुहक्किक अपनी तहकीक के लिए अगर किसी बावसूख ज़राए से रुजू करना चाहे तो वो कौन से ज़राए आपके? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, किस्सा ये है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है ना, इसके बारे में हिस्टोरियन जो हैं उन्होंने भी अपनी राय बदल ली है। वो ये कहते हैं कि हिस्ट्री का सोर्स एक तो अखबारात हैं, दूसरा कुछ लोग जो हैं जिन्होंने पॉलिटिकल एनालिसिस लिखा है, लेकिन उनसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स जो है वो आम लोगों की तहरीरें हैं। जिसमें एक आपको मिसाल देता हूँ कि 1897 की, जिसे हम जंग आज़ादी कहते हैं, वो गदर कहते हैं, उसके बारे में जो अब दोबारा लिखा जा रहा है और उसको एवेल्युएट किया जा रहा है, वो उन खतूत के ज़रिए से किया जा रहा है जो उस ज़माने में लोग एक दूसरे को लिखते थे। मसलन कई अंग्रेज़ थे जो बेचारे बड़ी बुरी हालत में थे, लोगों ने उनको पनाह दी हुई थी, उन्होंने खतूत लिखे, या दूसरे ऐसे जो गालिब के खतूत जो हैं जिसमें लोगों अंग्रेज़ों ने कैसे लोगों को फांसी वैसे दिए। वो कहते हैं ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री बेहतर है, और ये जो मैं किताबें लिख रहा हूँ मैं भी इसी नुक्ते नज़र से लिख रहा हूँ कि जो कुछ हमने देखा उसको चाहे अदब के रंग में इस तरह लिख दिया जाए ताकि आइंदा हिस्टोरियन को उससे कुछ ना कुछ अंदाज़ा मिल सके। ज़ाहिर है कि वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री का अंदाज़ा होता है। तो इस तरीके से जो है ना, जो कुछ भी लिखा जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि हर लिखने वाले को ये चाहिए
کہ وہ ایسے لکھے کہ اس کے اپنے زمانے کا عکس اس کی تحریروں میں آئے تاکہ آئندہ کے لیے ہسٹری والوں کو آسانی ہو۔ بہت شکریہ مسعود مفتی صاحب، آج کی محفل جو ہے وہ ہمارے لیے بہت منفرد رہی ہے۔ میرے خیال سے کوئی بھی ایسا اب تک ہمارے پاس سلسلہ میں نہیں آیا جس نے اتنا زیادہ لکھا ہو، اور بات بہت ساری کتابوں کی ہوئی، آپ نے کئی کتابوں کا آپ نے خود ذکر کیا، آج اکبر ظہری صاحب کی کتاب کا ذکر کیا، کینیڈی صاحب کی کتاب کا ذکر ہوا، آپ کی اپنی کتابوں کا ذکر آیا، اور وہاں پہ بھی نوجوانوں نے بھی پوچھا کہ کہاں سے تاریخ کے بارے میں ایک صحیح رائے حاصل کی جا سکے۔ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ کوئی گلہ نہیں ہے بلکہ امر واقعہ ہے کہ ہماری قوم میں کتابیں پڑھی بہت کم جاتی ہیں۔ کچھ مجبوری یہ ہے کہ وسائل کی کمی ہوتی ہے بعض دفعہ، کہ نوجوان میں جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پاس کتاب رسائی نہیں ہے، جن کے پاس وسائل موجود ہیں وہ کتاب پڑھتے نہیں ہیں۔ تو میرا آپ لوگوں سے درخواست یہی ہوگی کہ جتنی زیادہ جو چھپی ہوئی کتابیں ہیں ان تک جائیے اور ان سے اپنی رائے خود اخذ کیجیے۔ جب آپ مختلف نقطہ نظر پڑھیں گے تو آپ کو، بلکہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو شاید ہمارے قوم کے اوپر بہت صادق آتا ہے، امریکہ کے ایک لکھنے والے ہیں مارک ٹوین، جو شاید امریکہ کے سب سے زیادہ جانے پہچانے جانے والے مزاح نگار ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ شخص جو کتابیں نہیں پڑھتا اس کا کوئی فرق نہیں ہے جو کتابیں پڑھ نہیں سکتا۔ He who cannot read is no better than he who does not read books is no better than the person who cannot read books. تو میں اس نقطۂ نظر پہ میں درخواست کروں گا جناب خالد رحمان صاحب سے کہ وہ جو ہے اختتامیہ حسب سابق جو ہے اختتامیہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ میں اختتامیہ کو اس معنی میں ملتوی کروں گا کہ ہم نے پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ انشاءاللہ مسعود مفتی صاحب کے ساتھ ہم ایک مرتبہ اور بیٹھیں گے، اور معلوم نہیں آپ لوگوں کا کیا احساس ہے، درمیانیہ پیش کر دیں آپ۔ میں وہ درمیانیہ کی حد تک بات ہو جاتی، آپ لوگوں کا بھی شاید یہ احساس یقینی طور پہ ہوگا، شاید اور یقینی، کہ یہ ابھی تشنہ ہے، اور جس طرح سے ابھی ہم سوال جواب کے سیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں یعنی بہت ہی ایک طویل کیریئر ہے۔ کیریئر میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مسعود مفتی صاحب کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں، اور لکھنے لکھانے کا کام کرنے والا جو ہے وہ دراصل پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، لوگوں سے ملتے جلتے بھی بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اتنے طویل کیریئر کو اگر ہم 2 گھنٹے میں ظاہر سننا چاہیں گے تو وہ تو بہت ہی ناکافی ہیں، اور زیادہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی نشست ہو رہی ہوگی تو اس میں جو یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے بہت ساری چیزوں میں، جس کی وجہ سے ہمیں ان عوامل کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ جو پس پردہ ہو رہے ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، باقی قوم کے سامنے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو مستقبل کا تناظر ہم نے اپنے لیے متعین کیا ہے کہ ہم اس میں چیزوں ماضی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس میں میرا خیال ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس طرف زیادہ جا رہے ہوں۔ میں مثال کے طور پہ جیسے ایک سوال میرے ذہن میں تھا لیکن میں نے اسے بھی ہولڈ کیا، کہ جب مسعود مفتی صاحب نے بہت ہی متعین طور پہ اپنی یہ رائے ظاہر کی کہ میرے خیال میں مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا ہی گورنمنٹ کا پالیسی تھی۔ اب گورنمنٹ جب ہم کہیں تو اس میں تو بہت کچھ چھپ جاتا ہے، ہم کیسے اسے سمجھیں کہ گورنمنٹ سے اس وقت ہماری مراد کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ میں ساری کی ساری گورنمنٹ مل کے یہ پالیسی بنائے یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات، ظاہر چند لوگ ہوں گے۔ تو اب اس میں آپ کا آئی وٹنس بھی ہے، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس کی بنیاد پہ آپ یہ رائے اخذ کر رہے ہیں، تو ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی نشست میں سننا چاہیں گے۔ ایک بات جو یہاں بیٹھنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ جو مقرر ہے اس کے نوٹس پہ بھی کم از کم گاہے گاہے نظر ڈال سکتے ہیں۔ پڑھا میں نے کچھ نہیں اس میں سے، نہیں وہ پوائنٹس تھے، یہی پوائنٹس تھے جی، لیکن میں جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں بہت سے میں نے چھوڑ دیے، میں جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ہمارا اس وقت کا ایک المیہ ہے کہ ہم اردو زبان جو ہے وہ بھولتے جا رہے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مسعود مفتی صاحب نے حت المقدور پوری یعنی عادت کے طور پہ ہی اردو ہی بولی ہے، چونکہ مجلس اردو میں ہو رہی ہے، آپ کے نوٹس بھی سارے کے سارے اردو میں ہیں۔ یہ میرے لیے دوسری بات تھی، اور میں نے شروع میں آدھ گھنٹے کم از کم نوٹ کیا کہ یہ کتنے انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی
کہ 2-3-4 جگہ کے علاوہ مسعود مفتی صاحب نے انگریزی کا لفظ شروع میں نہیں استعمال کیا. بعد میں جیسے مجلس آگے بڑھتی ہے تو اسپونٹینیس بہت ساری باتیں، چونکہ آپ کا تھاٹ جو ہے، خیال جو آپ کے ذہن میں ہے، وہ جس زبان میں آتا ہے آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خود ایک بہت بڑی چیز ہے، جو ورنہ تو اب ہمارے یہاں سینیارٹی کا، پڑھے لکھے ہونے کا، تجربہ کار ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کتنی اچھی انگریزی بول سکتے. نہیں بول سکتے تو پھر تو وہ ان پڑھ ہے نا، جیسے وہ بدتمیز اردو میڈیم. تو میں نے یہ جیسے یہاں بیٹھے ہوئے نوٹ کیا. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے ہم اگلی نشست بھی آپ سے چاہیں گے، اور شاید اس میں مسعود مفتی صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ بیوروکریسی کو عنوان بنا کے اس کی یعنی 3 آپ نے کہے، ہموار، ابھار اور ڈھلوان. کیونکہ آپ کا جو دعوت نامہ ہے اس میں ویٹرن بیوروکریٹ کا لفظ ہے. جی جی بالکل. تو جیسے میں نے تو اس کی نہیں، وہ پہلو بھی بہت مفید ہے، لیکن انشاءاللہ پھر آپ کی جو ایک طرح سے پرسنل اکاؤنٹ ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے ہم اور بھی زیادہ چیزیں سننا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا خیال ہے جمال صاحب سے بھی نشست کی جائے. جمال صاحب سے اس کے بعد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میں بڑا نہیں، پہلے ان سے پوچھ لیا آدمی ہوں اور میں اتنا نالجیبل نہیں ہوں. میں تو مفتی صاحب سے سیکھنے کے لیے ہر دوسرے تیسرے دن کو فون کرتا رہتا ہوں، اور رات گئے تک نہیں جمال صاحب وہ نہیں، نقطہ نظر کی بات ہے. آپ اپنے نقطہ نظر سے کچھ بتا دیں ان کو. ضرور ہے. آج جو مجھے تشنگی نظر آئی ہے، ان کی اپنی بہت سیر آسر گفتگو تھی. انگریزی پر بھی عبور ہے، اردو پر بھی عبور ہے، اور کمال کا عبور ہے، تحریر ہے. میں نے آج کی کتاب پہ چند لفظ پڑھے، میں کہ آپ میں 2 خوبیاں ہیں. ایک تو آپ بڑے ظالم قسم کے قاتل ہیں، اور پہلے 11 سال کو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے. باقی حصوں میں آپ نے قاتلانہ حملے کیے ہیں. میں نے آج ان کو کہا، لیکن آپ میں وہ ایک خوبی بھی ہے کہ آپ موسیقیت بھی ہے بعض جگہوں میں. تو آپ نے بیوروکریسی کا انہوں نے تعریف بھی کی ہے دوسرے لفظوں میں. یعنی سریلے حملے کیے آپ نے. مجھے جو آج تشویش ہے ذاتی طور پر، میرا اپنا ایمان بھی ہے کہ قوم میں جملہ چلتی ہے بہت سے انسٹیٹیوشن کو ساتھ لے کے. اگر پاکستان کی ساتھ چلنے کی قسم نہیں پڑ سکی، اس رسم کو میں کیسے چلانا؟ یہ ایک بڑی تشویش ہے میرے لیے، جو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف. دوسری تشویش یہ ہے کتاب پڑھنے کی بات. ہماری نوجوان نسل موبائل پہ کمپیوٹر پہ آ گئی ہے، اور میں نہ موبائل اور کمپیوٹر استعمال کرنے کو بہت گھبراتا ہوں کہ میری اسٹرین پڑتا ہے. کتاب پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے جو چیز ہے، لیکن ہماری نسل اپنے ادراک میں کدھر جا رہی ہے. میرا اپنا فیتھ یہ ہے کہ جو پوٹینشیل ان میں ہے، انہوں نے اپنے پوٹینشیل کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے راستے خود بنا لینے، اور وہ قوتیں جو رزسٹ کر رہی ہیں وہ خود بہت سرنڈر کر جائیں گے. میرا فیتھ ہے. پازیٹیو نوٹ ہے بس. نہیں، بہت بہت شکریہ. اور ظاہر پازیٹیو نوٹ پہ ہم آج کی نشست کو ختم کر رہے ہوں گے. آپ نالجیبل تو بہت ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے اپنی ذات کے